Welcome everyone. I welcome you all to the second webinar that is being Student Activities Committee Day. Today we have with us Mr. Zahid Hussain, who is the Director QEC and lecturer at DHA University. He is also the researcher at Mr. Zahid Hussain exists a huge previous experience as he was a former General Secretary of IEEE Young Professionals at IEEE Karachi section. We welcome you, sir. During the webinar, please make sure, all participants, that your mics are muted and your videos. Assalamu alaikum everyone. Thanks for giving me this opportunity. I'm really excited to be here to speak with you. I have a long relationship with IEEE from the volunteer to branch level executive. Told my peers that IEEE is the mother of professionals, and we all are professionals belong to the IEEE. So thank you so much, and of course it's an honor for me to speaking at IEEE forum with you all. So about basic intuition about data science and its role in the business, and also you will learn about different machine learning algorithms, and last but not the least, application of those algorithms in the data science field. So, here are the ingredients of the webinar. Let's discuss one by one and briefly. After that, we will go in detail in each component, right? First, we will discuss about data science, why we need to adopt it, and what are the different roles who can play with data science and how it contributes to the business value. Second is data, in which we will discuss how does data rise from time to time, different generations of data and types of data which will use to extract the business values. Science is the third component in which we will discuss about role of machine learning, scripts of domain knowledge, actions of mathematics, and acting of statistics, which results a theater, of course not for the movie, but for the business insights. Fourth is the technology, and you all know that technology creates a trouble for us. Just kidding. Technology always support the community, in which we will discuss the options provided by the technology to apply those concepts of machine learning and data science. So last but not the least, applications. Obviously, potential business domains where we can apply data science and get value additions to the business. And I promise you, you, boring section is over, and let's have a fun with the data science, and let's discuss and explore the domain. So, data science. Uh, I have added both versions, the text as well as a visual. Uh, I didn't created this image. Actually, I have added images from the Pinterest and Eureka. They have very good infographics and images. So I have used their images in this. So data science is an interdisciplinary field. अच्छा, मैं एक एक कीवर्ड पे फोकस भी करूंगा क्योंकि डेटा साइंस के अंदर इन कीवर्ड्स की बहुत अहमियत है और हम इनको डिस्कस भी करेंगे लेटर प्रेजेंटेशन के अंदर भी और करंट. Data science is an interdisciplinary field that employs sophisticated tools
and techniques to extract knowledge and actionable insights from structured or unstructured data in order to optimize certain business objects. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को बोल्ड एंड कलर किया हुआ है. These words have the meanings in this field. Tools means the supported technologies which will be used in this field. Techniques, a science which take a vital role to enhance the business value, like a machine learning algorithms applied on the data. And insights, the results, the statistics shows from those डेटा साइंस. हम किसी भी डेटा के ऊपर कुछ एल्गोरिथम लगा के कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं. उन रिजल्ट्स को डिस्कस करके हम बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. उन बिजनेस डिसीजन के थ्रू बिजनेस के अंदर एक okay. Why we need data science? मतलब obviously science always face resistance when new things come in market. सो जो ट्रेडिशनल एनालिस्ट होते हैं जो कि सिर्फ एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि भाई व्हाई वी need to learn the machine learning algorithms, why we need to learn computer GPU processing and other softwares. So here is the reason for them that why they need data science. देखें एनालिसिस शुरू से होती हुई आ रही है, ठीक है ना. ये आज की या 10 साल पहले की बात नहीं है, 50 साल पहले भी एनालिसिस होती रही है. आप एक्सेल के अंदर डेटा अवेलेबल होता था, आप डेटा के ऊपर कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करके वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है. वो भी एक किस्म की एक इंसाइट्स ही आती थी, लेकिन उसकी जो वैल्यू एडिशन थी या उसका जो स्केल था वो बहुत लो लेवल था, और जो डेटा की साइज थी वो बिल्कुल स्मॉल डेटा थी. आप उस पूरे डेटा को विद इन मोमेंट गो थ्रू कर सकते थे. आप अगर कोई डायग्राम विजुलाइज ना भी करें तो आप टेबुलर डेटा को देख के बता सकते थे कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है. तो स्मॉल स्केल के ऊपर वो डेटा की डिस्कशन थी. लेकिन जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेटा एंड द कंप्यूटिंग पावर टेक अ रोल. आपके पास डेटा की साइज इस तरह से इंक्रीज हो गई है कि उसकी जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है. जब आपके पास डेटा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है और वो टेबुलर डेटा नहीं है, वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा नहीं है, तो उस डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए फिर जाहिर सी बात है आपको वो टूल्स चाहिए जो उस डेटा को समझते हो, और वो एल्गोरिथम्स चाहिए जो इस डेटा से इंसाइट्स निकाल सकें. दैट्स व्हाई वी नीड डेटा साइंस टू एक्सट्रैक्ट द नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा. सो एक नॉन टेक्निकल, एक बिजनेस ओनर, एक कंपनी के मालिक के पास हमेशा ये सवाल होता है कि कैन डेटा साइंस एड अ वैल्यू टू अवर बिजनेस, इफ यस देन हाउ. तो जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी क्लाइंट्स को आप डील कर रहे होते हैं, तो ये सवाल हमेशा एक डेटा साइंटिस्ट को फेस करना पड़ता है, और हमेशा ये पहला सवाल होता है कि हाउ कैन डेटा साइंस एड वैल्यू टू अवर बिजनेस. तो वहाँ पे आप जो है उनको एग्जाम्पल्स दें. एक वन ऑफ माई फ्रेंड चैट ऑप्शन ओके. One of my friend has a data science interview in Islamabad. टेरा डेटा कंपनी के अंदर उसका इंटरव्यू था. तो वहाँ पे CFO ने उनसे सवाल किया कि भाई हम आपको जॉब क्यों दें. तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया. उस बंदे ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, बिकॉज यू हैव अ डेटा एंड आई हैव द नॉलेज टू हाउ टू डील विद द डेटा. ठीक है ना, कि जब कंपनी के पास डेटा अवेलेबल है, अगर
आप उस डेटा से उनको इंसाइट्स निकाल के दिखा दें और बता दें कि ये इंसाइट्स जो हैं आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंपनी ओनर नहीं होगा जो कि इस डेटा को यूज करना नहीं चाह रहा होगा। इस वक्त हर कंपनी डेटा साइंस, चाहे वो बिजनेस इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स की लेवल के ऊपर हो, या चाहे वो सिंपल मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो कुछ ना कुछ डेटा साइंस का पार्ट अप्लाई कर रही हैं। मार्केटिंग के अंदर ये फील्ड जो है डेटा साइंस अप्लाई की जा रही है कि आप जो है क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, आप यूजर्स को पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग प्रोवाइड करें। आपके पास अगर डेटा है तो आपको पता है कि कौन से यूजर को कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज नहीं पसंद है। सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर देखेंगे आपकी फ्रेंड लिस्ट में 500, 600, 700 फ्रेंड्स एडेड हैं, और हर कोई डेली कोई ना कोई पोस्ट कर रहा होता है, लेकिन क्या आपको उन 500 की पोस्ट नजर आ रही होती है? डेली नहीं आती। आपको सिर्फ उन्हीं की पोस्ट नजर आ रही होती है जिनको आप लाइक करते हैं, जिनकी पोस्ट के ऊपर आप कमेंट्स करते हैं। तो फेसबुक पे इसकी तरह यूजर पर्सनलाइज्ड जो है एक व्यू क्रिएट कर रहा है, जिसमें आपको वो पोस्ट नजर आ रही हैं। वो आपके हर क्लिक पे, वो आपके हर लाइक पे, डिसलाइक पे, कमेंट पे वो आपको कैटेगराइज कर रहा है, आपकी कैटेगरीज क्रिएट कर रहा है। तो हर फील्ड में जो है, हेल्थ केयर में आप देख लें डेटा साइंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे डिजीज प्रोडिक्शंस हो रही हैं। चाइना के अंदर 2017 में कंपटीशन हुआ था कि वो कैंसर प्रोडिक्शन के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे टॉप कैंसर डायग्नोस्टिक डॉक्टर्स थे और सामने एआई बेस्ड सिस्टम था। तो जो एक्यूरेसी थी वो एआई सिस्टम की थी, वो इमेज क्लासिफिकेशन के थ्रू वो जो है प्रेडिक्शन कर रहा था। तो इस तरह से हर फील्ड के अंदर आप ट्रेवल, इन्होंने डेटा साइंस को अप्लाई किया हुआ है, वो यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के बेस के उसके ऊपर उनके साथ उनकी ट्रेवलिंग पॉइंट्स शेयर कर रहे होते हैं। So data science components, very important slide। अगर मैं यहाँ पे भी ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आगे हमने बढ़ना है। ये कोर है डेटा साइंस के हवाले से। आपके पास डोमेन नॉलेज या डोमेन एक्सपर्टीज, डेटा इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन एंड एडवांस कंप्यूटिंग। विदाउट डोमेन नॉलेज आप डेटा साइंस के एल्गोरिथम, आप स्टैटिस्टिक्स, आप पावर, आपके लिए यूजलेस है। आपके पास डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। सपोज यू आर रियल स्टेट ओनर एंड यू हैव अ नंबर ऑफ हाउसेज टू सेल एंड नंबर ऑफ हाउसेज टू परचेज। अगर आपको ये नहीं पता कि किस सीजन के अंदर हाउसिंग की प्राइस ज़्यादा होती है और किस सीजन के अंदर कम, किस सीजन के अंदर जो है हाउस सेल ज़्यादा होते हैं, और किस कैटेगरी, किस लोकेशन के एरिया के अंदर जो प्राइसेस हाई या लो हैं, तो आप इस नॉलेज का कुछ नहीं कर सकते। तो डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फील्ड। अगर आप मेडिकल डेटा सेट्स के ऊपर काम करें, मेडिकल साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक जो है कैंसर क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैंसर के साइन कौन से होते हैं, कैंसर की सिंबल्स कौन से होते हैं, उनकी वेरिएशंस क्या होती हैं, उसकी सेगमेंटेशन क्या होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई है वो सही हुई है, नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है डोमेन नॉलेज इज अ मैंडेटरी फॉर द डेटा साइंटिस्ट टू एक्सटेंड हिज एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेटा साइंस। आपके पास स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की अगर स्किल्स या नॉलेज कह लें नहीं है, तो आप डेटा साइंस साइंटिस्ट नहीं बन सकते। सिर्फ उस आपके आप बहुत एक्सपर्ट हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के, आप डीप लर्निंग एल्गोरिथम के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप एआई के बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स नहीं आती, ठीक है, तो आप डेटा साइंटिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि जो कोर फील्ड
या कोर डोमेन जो होती है डेटा साइंटिस्ट की, वो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और डोमेन नॉलेज। ठीक है, हम आगे चल के ये रोल क्लियर कर देंगे कि इनके अंदर फर्क है, पर मेजरली डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। क्यों कि आप जब डेटा साइंस की फील्ड में डेटा के अंदर इनसाइट्स देखना चाहते हैं कि क्या ये डेटा फ्रूटफुल है, ये कोई इनसाइट्स दिखा सकता है, तो उन चीज़ों को, उन वेरिएशंस को देखने के लिए आप मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। जो ऑपरेशन होता है वो लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के होते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन क्या इफेक्ट हुआ है डेटा साइंस डेटा के ऊपर, उसको देखने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स के डायग्राम्स अप्लाई करें। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज आनी चाहिए। उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आपके पास एक कंपनी का डेटा है और रॉ डेटा है, और आपको कहा गया है कि भाई इस डेटा से जो है आप इनसाइट्स निकालें, तो आपके पास बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज एंड स्टैटिस्टिक्स नॉलेज आप वहाँ से सिलेक्टेड नंबर ऑफ फीचर्स निकाल सकते हैं कि भाई ये वो फीचर्स हैं। फीचर्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एक्सेल शीट होती है ना, वहाँ पे आपके पास टेबुलर डेटा होता है, सपोज 10 कॉलम है, और आपने 10 कॉलम्स में से 5 कॉलम पिक किए कि भाई ये वो 5 कॉलम है, बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज जो कि बिजनेस वैल्यू में एडिशन कर सकते हैं। इनके ऊपर फर्दर एनालिसिस की जाए, इनके ऊपर फर्दर जो है आप एल्गोरिथम्स अप्लाई किए। तो डेटा इंजीनियरिंग, ये एक डेटा इंजीनियर एक अलग एक पोस्ट होती है मार्केट के अंदर, जो कि डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हडूप और स्पार्क अप्लाई करके वो बिग डेटा को डील करते हैं, और वहाँ से एक मीनिंगफुल मशीन अंडरस्टैंडेबल डेटा जो है एज अ रिजल्ट निकाल के वो कंप्यूटर को फीड कर रहे होते हैं, जो कि फर्दर मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास अमाउंट ऑफ साइज ऑफ डेटा एक्सटेंड कर जाएगा, इन्हांस कर जाएगा, तो उसको प्रोसेस करने के लिए यू मस्ट हैव अ कंप्यूटिंग पावर, जो कि आजकल की जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन्स हैं, जीपीयूज हैं, टीपीयूज हैं, और थैंक्स टू गेमर्स जो गेम खेलते हैं, जिनको ग्राफिक्स की कार्ड्स की ज़रूरत होती है, उनकी वजह से ये फील्ड मशीन लर्निंग फील्ड या डीप लर्निंग फील्ड जिसको कह लें, जिसका बूम आगे बढ़ा है, उनकी वजह से ग्राफिक्स कार्ड बने, और साइंटिस्ट ने उन ग्राफिक्स कार्ड के अंदर कंप्यूटिंग कोर्स को यूज़ करते हुए डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग को आगे बढ़ाया। सो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, आज कल हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, वो भी सवाल कर रहे हैं, सर मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहा हूँ, मैं डेटा इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ कि मुझे मशीन लर्निंग आती है, मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूँ, मुझे मशीन लर्निंग आती है। देखें, इट्स आप हर फन मोला नहीं बन सकते, आप ऑलराउंडर नहीं बन सकते। यू हैव टू बी फोकस्ड टू द फील्ड। इन तीनों फील्ड्स के अंदर बहुत डिफरेंस है, आपको वो क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए आपको मशीन लर्निंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डेटा एनालिस्ट के लिए आपको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। डेटा एनालिस्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए। डेटा एनालिस्ट के अंदर जो है आपके पास एक रॉ डेटा होता है, और डेटा एनालिस्ट हमेशा टेबुलर डेटा के ऊपर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। डेटा एनालिसिस जो डेटा एनालिस्ट होता है, वो हमेशा टेबुलर डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है। सपोज आप अगर मेरी जॉब रोल को बात करें, एज अ क्यूईसी मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वालिटी का डेटा हो रहा था, और मुझे अगर मेरे बॉस ने कहा है कि भाई हमें उन स्टूडेंट्स का डेटा निकाल के दें जिनकी जीपीए मोर देन 3.0 है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करूँगा, एंड वो रिपोर्ट जनरेट करके अपने बॉस को दिखा दूँ। दैट इज सिंपल डेटा एनालिसिस। या आप जो है कुछ एक्सेल के एडवांस फार्मूला अप्लाई करके मैक्स टू द बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन नॉलेज अगर ना भी हो तो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप वो फार्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर डोमेन नॉलेज है भी, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देयर। सो डेटा एनालिसिस का ये स्कोप है, ठीक है। द नेक्स्ट इज डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का एनालिसिस से कोई काम नहीं है, इनसाइट से कोई काम नहीं है। डेटा इंजीनियर को एक डेटा दिया जाता है, और डोमेन नॉलेज की हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, बिग डेटा, और उसको कहा जाता है कि ये डेटा है,
क्योंकि वो बिग डेटा कहलाता है, बिग डेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। आप हमें जो है यहाँ से ये वाले इन 1000 वेरिएबल से हमें ये 100 वेरिएबल निकाल करके दे दें और डेटा क्लीन करके दे दें। तो जो डेटा इंजीनियर होता है उसके पास मैथमेटिक्स स्किल्स होती हैं, और ये हडूप और बिग स्पार्क वगैरह अप्लाई करके, जो कि डेटा हैंडलिंग टूल्स होते हैं, ये अप्लाई करके वो क्लीन डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है, जो कि आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए काम कर रहा है। सो डेटा इंजीनियर सोलली रिलेटेड टू द डीलिंग विद द डेटा, जो कि डेटा के ऊपर काम कर रहा है, वो एनालिसिस से डील नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा हैंडलिंग और डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियर के दरमियान। नाउ कम टू द डेटा साइंटिस्ट। ये वो पोस्ट है जो कि आजकल के ग्रेजुएट जो है उनके लिए एंथुसियाज्म होते हैं, उनके पास एक ये कह लें कि मोटिवेशन होता है कि आजकल मार्केट में चल रही है कि डेटा साइंटिस्ट, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, मेनली जो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है ना, अगर बिल्कुल बाय बुक अगर हम देखें तो डेटा साइंटिस्ट के पास अगर मशीन लर्निंग की नॉलेज ना भी होना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट को मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और उस मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। आप चाहे मैटलैब पे काम कर लें, आप चाहे आर पे काम कर लें, आप चाहे अपना पाइथन पे काम कर लें, डजंट मैटर, आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके वो इनसाइट्स कवर करके। डेटा साइंटिस्ट हमेशा वो डेटा से फीचर एक्सट्रैक्ट करके देता है, जो कि बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज आपकी बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन करके देखें, और उनलाइज करके डेटा साइंटिस्ट डेटा के अंदर ये भी देखता है कि अच्छा ये डेटा वैल्यू एडिशन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि हर डेटा वैल्यू एडिशन नहीं करता, ठीक है ना। वो एक अलग स्टैटिस्टिक की डोमेन है कि उसके अंदर मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब कुछ देखा जाता है कि डेटा के अंदर वेरिएंस कितनी है, मीन कितना है, मीडियन कितनी है। बॉक्स प्लॉट के थ्रू जो है ये स्टैटिस्टिक्स देखी जाती है, फिर जाके उसके ऊपर फर्दर मॉडलिंग अप्लाई होती है। तो डेटा साइंस, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, आप मैथमेटिक्स की डिग्री रखते हैं और आपके पास स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है और आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, तो यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स डिग्री नहीं है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है, ठीक है, और आपके पास मैथ नॉलेज है और प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो भी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज ऑलराउंडर जो है शुरू से लेके आखिर तक जो है, अगर हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो भी रिक्वायरमेंट से उसी से करवाएंगे, प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सब एक ही डेवलपर से काम हो रहा है। कुछ कंपनीज हैं जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, जो कि प्रोसेस को फॉलो करती हैं, उनकी एक अलग टीम्स होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है एक ही डेवलपर से काम लिया जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट जो जहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो डेटा साइंस पाकिस्तान के अंदर डेटा साइंटिस्ट के लिए मैथ, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग, ये चारों रिक्वायर्ड है। यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, दुबई के अंदर जो रिक्वायरमेंट है डेटा साइंटिस्ट की, वहाँ पे जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर अलग से हायर किए जाते हैं और डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर सेपरेटली हायर। तो उनका एक अपना एक स्कोप होता है जॉब का, जो कि उसके साथ डील करता है। क्लियर? आई होप कि आपको इन तीनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। और अब जो जिनके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है या मैथमेटिक्स की, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। लाजमी नहीं है आपके पास CS की डिग्री हो। डेटा साइंस, अच्छा, अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ तो काइंडली मुझे रोक लीजिएगा। मैं वैसे ही जो है थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो अगर किसी को कोई लगे कि मैं आगे जा रहा हूँ तो काइंडली रेज अ हैंड एंड आई विल ट्राई टू हैंडल माई सेल्फ। अच्छा, ये प्रोसेस है आपके पास, समझने के, ये चेकलिस्ट है आपके पास। इस चेकलिस्ट को फॉलो करके आप एक कंप्लीट डेटा साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सपोज सबसे पहले जो डेटा साइंटिस्ट के पास आती है, जब उसको हायर किया जाता है किसी कंपनी के अंदर, तो बॉस उसको जो है ना बिजनेस रिक्वायरमेंट देता है कि हेयर इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भाई मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है और ये हमारी सेल्स है, ये डेटा है,
मुझे उन कस्टमर का डेटा निकाल के दो जो हमारी ये XYZ कस्टमर प्रोडक्ट को जो है खरीदते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट का एक नया वर्जन आया, हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है और आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है। जो भी सेल्स का उसका डेटा था, उस वेबसाइट का पूरा डेटा इनको साहब को दिया गया है। अब डेटा एक्विजिशन के अंदर उसके पास यूजर रेटिंग्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, कार्ड हिस्ट्री भी है यूजर की, तो और मच मोर वेरिएबल्स जो भी उसके पास अवेलेबल है। अब ये डेटा है, तो जब उसके पास डेटा आ गया तो नेक्स्ट फेज होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट phase for the machine learning and data scientist engineer। देखें, डेटा एक कहावत होती है ना कि डेटा आपके साथ कभी सच्चा नहीं होता, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज होंगी, फेक रिव्यूज होंगे, अननेसेसरी डेटा होगा। अननेसेसरी डेटा मीन्स कि एक यूजर है, उसने यूजर रेटिंग के अंदर तो 5 स्टार दे दिए, लेकिन कमेंट पे लिख दिया है बैड प्रोडक्ट। अब आप इस रिव्यू को क्या कंसिडर करेंगे कि भाई ये कहाँ जा रहा है, रेटिंग में तो 5 स्टार दे दिया, लेकिन कमेंट में बैड लिख दिया। तो इस तरह की कमेंट्स जो है ना, आपको फिर वो उनको स्टैटिस्टिक्स आप जब निकालते हैं और फिर उनकी कोरिलेशन निकालते हैं कमेंट्स और रेटिंग्स के दरमियान, तो फिर आपको देखा अच्छा नहीं ये जो कमेंट्स हैं ये वैल्यू एडिशन नहीं, फिर आपको वो रिमूव करने पड़ते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर इस तरह, यहाँ कोई यूजर है, उसने रेटिंग दे दी और कमेंट्स में कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, बस रेटिंग दे दी और ओके कर दिया, तो मिसिंग वैल्यूज भी होती हैं आपकी वेरिएबल्स के अंदर, तो उन मिसिंग वैल्यूज को भी डील करना पड़ता है। मिसिंग वैल्यू के हवाले से डेटा प्रोसेसिंग का एक पूरा फेज है, हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे इस पर डिटेल नहीं करता। बहरहाल आप डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ये स्टेप्स अप्लाई करते हैं। एंड देन डेटा एक्सप्लोरेशन, जब आपने वो मिसिंग वैल्यूज फिल कर दी या रिमूव कर दी, फेक रिव्यूज को आपने जो है रिमूव कर दिया, अननेसेसरी डेटा को आपने हैंडल कर दिया, अब है एक्सप्लोरेशन। अब आप देखेंगे क्या ये डेटा मुझे इनसाइट्स दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको उस एक्सप्लोरेशन के बेस पे बाद दफ़ा आप क्या करते हैं, वो डेटा जहाँ से आपको पहले डेटा मिला था आप उसको बोलते हैं कि भाई नहीं कुछ और वेरिएबल्स अगर हैं तो मुझे दिखाओ, फिर वो नेक्स्ट आइटम पे एक डेटा एडिशन हो रही थी, डेटा सेट एक्सटेंड हो रहा होता है, या अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स कम होते हैं तो डेटा सैंपल्स इन्हांस किए जाते हैं। तो इस डेटा एक्सप्लोरेशन फेज के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि इस डेटा के अंदर वैल्यू एडिशन है या नहीं, हम इसके ऊपर मॉडलिंग अप्लाई करें या नहीं। इस फेज 4 पे डिसीजन लिया जाता है कि हमने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है या नहीं करना। अगर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है डेटा सेट के अंदर तो उसको वहीं पे बंद कर लिया जाता है, या तो फिर दोबारा डेटा कलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, या फिर जो है इसको वहीं पे ही जो है क्लोज किया जाता है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा भी कोरिलेशन है डेटा के अंदर, थोड़े से भी पैटर्न्स अवेलेबल हैं, 10% ऑफ द पैटर्न्स भी अवेलेबल हैं, तो भी डेटा साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आगे मूव करते हैं कि भाई 10% है विजुअलाइजेशन के अंदर, तो मे बी मॉडल फर्दर इसको जो है इनसाइट्स डिटेक्ट कर सके, तो फिर मॉडलिंग अप्लाई की जाती है, वहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं और डिफरेंट अदर मॉडलिंग। और उसके बाद जो है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये है कि जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया, टेस्ट हो गया, अब टेस्टिंग के बाद जब उसको अनसीन डेटा दिखाया जा रहा है तो उस अनसीन डेटा के ऊपर मॉडल किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस वक्त फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, जो कि हम लेटर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट, अच्छा ये एक बिजनेस कहावत है, और ये हार्वर्ड के बिजनेस रिव्यू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था डीजे पटेल की तरफ से कि डेटा साइंटिस्ट जो 21st सेंचुरी की मोस्ट डिमांडेड जॉब है। और आजकल पैंडमिक की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है उन कंपनीज के ऊपर जो डेटा साइंस अप्लाई किया हुआ था उन्होंने अपने बिजनेस की वैल्यूज के अंदर। अभी करंट 2 दिन पहले IBM का एक रिव्यू आया था, आर्टिकल था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब जो हमारे मॉडल्स हैं, जाहिर सी बात है पूरा बिजनेस क्लोज है, कोई डेटा नहीं आ रहा, तो मॉडल को क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। अब वो मॉडल इतने जीरो डील नहीं कर सकता, जब आप डेटा के अंदर बहुत ज्यादा जीरोज आ जाते हैं तो डेटा स्पार्स कर मॉडल स्पार्स कर जाता है, वो मॉडल नेगेटिव प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाता है, तो उनके यहाँ बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। तो उन्होंने अब जो क्लेम किया है, उन्होंने कहा डेटा साइंस इन क्वारंटाइन,
ये हेडिंग इन्होंने पब्लिश की है कि डेटा साइंस इन क्वारंटाइन, मीन्स के फिलहाल इन दिस सिचुएशन आप डेटा साइंस को जो है साइड पे रखें और मैनुअल प्रैक्टिसेस करें, आप डेटा मैन्युअली गैदर करें और उसके बेस पे आप चलें। जैसे ही फिर सिचुएशन नॉर्मल हो तो देन आप फिर दोबारा डेटा साइंस अप्लाई। तो बहरहाल पैंडेमिक ने इफेक्ट किया है काफ़ी कंपनीज को इसके हवाले से। तो मोस्ट डिमांडिंग जॉब है 21st सेंचुरी के हवाले से, अभी भी डिमांड है। सो हमारा जो नेक्स्ट फेज है दैट इज डेटा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं जो आगे वो हमने कवर करनी। अच्छा, जब जनरेशन की हम बात करेंगे तो जब डेटा इंक्रीज, उसकी साइज में इंक्रीज हो रहा था तो वॉल्यूम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, डिफरेंट वेराइटीज़ का डेटा आ रहा था सोशल मीडिया से, मशीन से, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, और उसकी जो स्पीड थी इंक्रीजिंग की दैट इज एक्सपोनेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो ये 3 V's इसको कहते हैं ऑफ द बिग डेटा। और जैसे ही फिर कंपनीज ने डेटा साइंस को अप्लाई करना शुरू किया और उन्होंने डेटा जनरेशन शुरू की, एक नए एक्सपेरिमेंट हुए, एक नए टाइप का डेटा जनरेट होने लगा, तो उसके ऊपर एक नए हाइपोथेसिस लगने लगे। तो 3 V's के बाद जो है 4 V's आ गया। तो वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी तो था, अब आ गया वेरोसिटी। वेरोसिटी मीन्स कि जो डेटा है, क्या आप डेटा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये डेटा ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी मीन्स के क्या ये इनसाइट्स इसके अंदर हैं। बिजनेस वैल्यू एडिशन की तो बात अलग है, जब वो निकलें क्या इसके अंदर हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये इनसाइट्स दे सकता है। तो ये वेलोसिटी के अंदर इसको हम कैटर करते हैं। और उसके बाद फिर 5 V's ऑफ द बिग डेटा, सेम फॉर द वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, वेरासिटी, वेराइटी एंड द वैल्यू। The fifth one is the value. Having access to the big data is all well and good, but that's only useful if we can't turn it into the value. जब आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, डेटा साइंस अप्लाई करते हैं, और आपने इनिशियल कहा भी था कि ये इस डेटा सेट के अंदर इनसाइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इनसाइट्स वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेटा के अंदर वैल्यू एडिशन होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा साइंटिस्ट इंश्योर कर रहा होता है कि ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर अवेलेबल हों। ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर जिस तरह का डेटा एज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, यू कैन विजुलाइज इन दिस सर्कल्स कि ये 2017 और 2018 का डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेसबुक लॉगिन्स हैं। जब एक लॉगिन होता है तो उस एक पर्सन, एक लॉगिन की डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा जो है इंक्रीज एड हो जाते हैं उस डेटा सेट के अंदर। तो 2017 के अंदर 9 लाख लॉगिन्स और उसी तरह 2018 के अंदर 73,000 की इन्हांसमेंट जो है वो ये लॉगिन्स के अंदर, मीन्स के उतने अकाउंट्स इंक्रीज हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल अकाउंट्स की बात नहीं हो रही, ये उस ईयर के दरमियान की बात हो रही है कि इसके अंदर। इसी तरह से आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस का डेटा है, यूट्यूब, इसके अंदर स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, टेबुलर, वॉइस, टाइम सीरीज डेटा आप उसको कह सकते हैं। उसी तरह 18-19 के अंदर जो है आप ट्विटर का भी डेटा देख सकते हैं। ट्विटर के अंदर जो है थोड़ा सा एक स्केल डाउन हुआ है कि ट्वीट्स कम हुई हैं, लेकिन 17-18 में इंक्रीज हुई थी। बहरहाल ये अप एंड डाउन होता है क्योंकि ये सैम्पल डेटा होता है, ये इनिशियल कंप्लीट डेटा नहीं होता। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच डेटा वी हैव इन ऑन द इंटरनेट, जो कि ये पूरा डेटा जो है 1 सेकंड के अंदर जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, ये मतलब पूरे साल का डेटा नहीं है, 1 सेकंड के अंदर ये डेटा, सॉरी 1 मिनट के अंदर ये डेटा जनरेट हो रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो है आपके पास 1 मिलियन लॉगिन्स आ गए वर्ल्ड वाइड। तो ये फ्रीक्वेंसी है डेटा की साइज की इंक्रीमेंट की। सो जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के डेटा के साथ आपको डील करना पड़ता है। मेजरली 2 टाइप होती हैं डेटा की। कैटेगोरिकल डेटा होता है या जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, और एक होता है न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, फर्दर कैटेगोरिकल में नॉमिनल डेटा होता है। नॉमिनल मीन्स के आप रैंडम
जो है नंबरिंग दे रहे हैं, कोई सैम्पल्स हैं, आप पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, बुक है, कॉपी है, एनीथिंग एल्स, यहाँ काउ, डॉग, कैट, बफेलो, ईटीसी। लेकिन जो ऑर्डिनल होता है ये एक मीनिंगफुल डेटा होता है। आपके पास 3 कैटेगरीज होती हैं और उस हर कैटेगरी के अगेंस्ट जो है नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। सपोज ये आपके रिव्यूज हैं आपके सेमिनार के, और आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक यूज़र आएगा, वो इस पर प्रेस करेगा, एक्सीलेंट। दूसरा आएगा वो गुड पे प्रेस करेगा, तीसरा आएगा एक्सीलेंट पे, चौथा आएगा बेड पे, फिफ्थ आएगा एक्सीलेंट पे। तो हर कैटेगरी अगेंस्ट जो है ना ये डेटा इंक्रीज होता रहेगा। तो इसको ऑर्डिनल डेटा कहते हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर रिव्यूज होते हैं या प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, उस तरह का डेटा जो होता है ना वो ऑर्डिनल डेटा होता है। तो उसको एक डील करने का एक डिफरेंट तरीका है। और एक होता है न्यूमेरिकल डेटा, जिसके अंदर कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल होता है। हाइट है, वेट है, सैलरी है, टेम्परेचर है, उसके अंदर कोई क्लासेस नहीं है, कोई जो है कैटेगरीज नहीं है, वो एक कंटिन्यूस डेटा है, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है नंबर की सूरत में। और एक होता है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है ना। तो वहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन है। सपोज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस, अगर हम पाकिस्तान के अंदर सर्वे करना चाहें तो मेजरली 20, 25, 30 इतनी लैंग्वेजेस होंगी। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 50। तो एक क्लास जो है डिफाइन होती है। तो ये इस तरह का ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए डेटा के हवाले से, ताकि जब उसको डील करें तो इन चीज़ों का आपको पता हो। और एक टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है आपके ऊपर। आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आप मशीन ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, जो कि आपका टेक्स्ट है। आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर जाना चाह रहे हैं, अगर आप ऑर्डिनल डेटा को हटा दें, आप सिर्फ कमेंट्स को डील कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे टेक्सचुअल डेटा सेट अवेलेबल होता है। मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं या और भी डेटा अवेलेबल है। आप टॉपिक मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाह रहे हैं रिव्यूज के बेस के ऊपर कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वो टैक्स का पूरा डेटा होता है जो एनएलपी की डोमेन को यूज करते हुए आप उसको डील कर सकते हैं। और इमेजेस, ये ऊपर जो हमने डेटा डिस्कस किया वो लीनियर डेटा कहलाता है, और जो टेक्स्ट और ये जो इमेजेस का डेटा है इसको नॉन लीनियर जो है डेटा कहा जाता है। ये नॉन लीनियर, इसके अंदर लीनियरिटी अवेलेबल नहीं होती। ये इमेजेस का डेटा जो है बैकएंड पे एज अ मैट्रिक्स का डेटा अवेलेबल होता है। उसी तरह से आपके जो वॉइस या सिग्नल्स का डेटा है, इस तरह का डेटा होता है। और आप जब उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह के एरेज बन जाते हैं, जिन एरेज को यूज करते हुए एज अ सैंपल आप अपने मॉडल्स को दे रहे होते हैं कि भाई सपोज वॉइस प्रिडिक्शन करनी है या वॉइस जो है क्लासिफिकेशन करने के, ये वॉइस किसकी है, ये वॉइस किसकी है, या आप स्पीच टेक्स्ट ट्रांसलेशन करना जा रहे हैं, तो भी वॉइस का डेटा आपके पास तरह से अवेलेबल है जो इसको आप डील कर रहे होते हैं। अब ये है कि ये सारे डेटा हैं, तो एक्चुअली जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं डेटा साइंस के अंदर, जब पास एक रेडी टू यूज डेटा होता है तो उसकी सूरत क्या होती है, उसकी शक्ल क्या होती है, उसकी विजुलाइज किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक सैम्पल डेटा सेट है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में आप के पास, जब आप स्ट्रक्चर डेटा कोई भी हो, आपके पास वो लेबल्ड डेटा हो या नॉन लेबल्ड डेटा हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड डेटा की, ठीक है। अनस्ट्रक्चर तो फिर वो किसी भी सूरत में हो सकता है, टेक्स्ट की सूरत में, इमेजेस की सूरत में, या किसी और सिग्नल्स की सूरत में, वो अलग है। लेकिन स्ट्रक्चर डेटा की हम बात कर रहे हैं। ये एक फेमस डेटा सेट है। मशीन लर्निंग आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप आयरिस के डेटा सेट को डिस्कस करें। बहुत ही फेमस डेटा सेट है, इसको एजुकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। प्राइमरी लर्निंग के अंदर जो है इंडस्ट्री के अंदर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, क्योंकि ये एक छोटा सा सेट है और क्लीन का सेट है, कोई क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो इसके ऊपर काम, ये जो है फ्लावर है आयरिस, और इसकी जो पत्तियां हैं इसकी 3 टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स की क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन का डेटा है सेपल लेंथ, ठीक है। ये जो है ये इसको सेपल कहा जाता है, और पेटल लेंथ, और ये जो पार्ट है उसका ऊपर वाला उसको पेटल। तो इसकी लेंथ और विड्थ का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको देख के ये कहा जाता है ये सेटोसा है या वर्सिकलर है या वर्जनिका है। तो ये इस तरह का डेटा सेट होता है। ये नंबर जो रोज होती हैं वो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, या इंस्टेंस कहा जाता है, या ऑब्जर्वेशंस कहते हैं इसे। और
जो कॉलम्स होते हैं ये आपके फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये फीचर्स होते हैं। और कॉलम्स के बाद जो लास्ट कॉलम होता है ना, अगर आप लेबल्ड डेटा के साथ डील कर रहे हैं तो लास्ट कॉलम जो होता है उसका लेबल होता है, ठीक है ना, कि भाई ये फीचर्स हैं और इसको इस क्लास के साथ जो है ना लेबल के साथ टैग कर दें। अगर आप इस टेबुलर डेटा को ये लेबल डेटा अगर अनलेबल करना चाहें तो ये लास्ट क्लास को हटा दें तो ये अनलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास एक डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं लेबल डेटा को डील करने के लिए और अनलेबल डेटा को डील करने के लिए। सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये इस तरह का डेटा सेट का लुक होता है टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। चलें जी, साइंस के पार्ट में हम चलते हैं। और साइंस के पार्ट में हमारा पहला सवाल होता है व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। सो anyone know about what is machine learning? You have a 30 seconds for the response. Chat open कर दें। Anyone know about machine learning? Ex-colleague as well as my teacher, my mentor. Yes, ma'am, please. So, what is machine learning, ma'am? मैम को अनम्यूट कर दें अगर अच्छा चैट का ऑप्शन, मैम चैट में ही आप बता दें। एक्चुअली क्यूए सेशन वो एंड में है तो इनिशियली प्रोटोकॉल की वजह से इन्होंने चैट ऑन की हुई है। करेक्ट, ठीक है। देखें आंसर जो है ना एक फ्रेज है वो एक मेरे कोलीग यूज करते हैं कि आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द रीजनिंग बिहाइंड द आंसर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आंसर तो सबके जो जवाब आते हैं बिल्कुल सही हैं, जो रीजनिंग होती है ना वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट होती है कि आप आंसर के बिहाइंड पे आप कोई ना कोई हाइपोथेसिस ड्राइव कर रहे होते हैं, वो एक रीजन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो रीजन इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू एवरीवन। So, machine learning, understand the prerequisite, learn various ML concepts and take part in the competitions. So, machine learning is a data science technique used to extract patterns from data, allowing computers to identify related data and forecast future outcomes, behaviors and trends. ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये ट्रेडिशनल डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी ये काम हो रहा होता था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम डेटा देते थे और डेटा के अंदर एक्सट्रैक्ट पैटर्न होते थे और आउटकम निकलता था, तो फर्क क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सी अप्रोच है? आप मॉडल को जो है रूल्स देते हैं, डेटा देते हैं और आंसर प्रेडिक्ट जो है करते हैं, ये कौन सी अप्रोच है? वन लाइनर। चैट ओपन करें। ओके It is open. ओके, ठीक है, बिल्कुल। दिस इज ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती थी जहाँ पे हम रूल्स इफ एंड कंडीशन या फंक्शन प्रोवाइड करते थे कि आपने ये काम करना है, एक्स प्लस बी करना है और उसकी वेरिएबल्स की वैल्यूज देते थे, उसके बेस पे हम आंसर मिलता था। तो ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मॉडल को डेटा दे रहे हैं और आंसर्स भी दे रहे हैं और हमें आउटपुट क्या हो रहा है? रूल्स। ये कौन सी अप्रोच है? कैन एनीवन टेल मी कि हम डेटा और आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल को और आउटपुट में हमें रूल्स मिल रहे हैं।
करेक्ट। तो दिस इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच। मशीन लर्निंग जो एक्चुअली हम इसको डेटा प्रोवाइड करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं और ये इसका आंसर है। अब हमें बताएं कि किस रिलेशन के थ्रू, किस पैटर्न के थ्रू ये आंसर आया है। एक्चुअली क्योंकि मशीन लर्निंग का जो डेटा सेट होता है, हमारे पास फीचर्स होते हैं और उस फीचर्स के लेबल भी अवेलेबल होते हैं। तो लेबल एज अ आंसर काम कर रहा होता है, ठीक है। आपका एज अ आंसर होता है जो लेबल होता है। आपको रूल्स पता करने होते हैं कि भाई ये किस रूल्स के तहत, किस रिलेशन के तहत जो है इस डेटा पॉइंट्स को, जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया ना एक डेटा सेट कि भाई ये 5.1 है, 3.5, 1.4 और 0.2, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको सेटोसा कहते हैं। ये जो है सेटोसा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस रूल के तहत ये सेटोसा है। तो वो जो रिलेशन है ना, वो जो पैटर्न है, हमें मशीन लर्निंग वो डिटेक्ट करके बता रही होती है कि इस रूल के तहत, इस पैटर्न के तहत जो है ये सेटोसा है, ये वर्सिकलर है, ये वर्जिनिका है। तो मशीन लर्निंग हमें रूल्स जो है प्रेडिक्ट करके बता रही होती है। सो हियर इज द फैमिली ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। मशीन लर्निंग के अंदर मेजरली there are three categories: unsupervised, supervised and reinforcement learning, and then supervised की भी categories हैं, clustering and अब मैं इसको थोड़ा ओवर बता दूं कि सुपरवाइज के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो लेबल्ड डेटा होता है, ठीक है ना। और अनसुपरवाइज के अंदर जो है हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है। सो लेबल्ड मीन्स के यू हैव अ डेटा एंड यू हैव द इंफॉर्मेशन कि ये डेटा किससे बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, कोई बताने वाला है आपको, आप मशीन को बता रहे थे कि ये इस लेवल से बिलोंग करता है, ये इस लेवल से बिलोंग करता है। अनसुपरवाइज में कोई लेबल नहीं होता, मशीन को खुद से पैटर्न जो है डिटेक्ट करने पड़ते हैं। सो हेयर इज एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग कि आप को सुपरवाइज किया जाता है, मशीन को सुपरवाइज किया जाता है डेटा सेट देके, भाई ये सैंपल है और ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ये सैंपल इस क्लास से बिलोंग करता है, इस टाइप का डेटा इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। सो और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मेजरली दो कैटेगरीज होती हैं, दैट इज रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन जो है एक कंटिन्यूस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सपोज मैं हाउस का डेटा सेट है मेरे पास कि हाउस का एरिया है और हाउस के अंदर नंबर ऑफ रूम कितने हैं और नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, ठीक है, फर्निश्ड है या नहीं है, और मैं उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ। जाहिर सी बात है उसकी प्राइस जो है वो एक कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। वो सपोज 1 लाख से लेके 10 लाख तक जो है ना कहीं पे भी वेरी कर सकती है। तो जब हमें पता ना हो कि आउटपुट क्या आ सकता है, तो उसको हम कंटिन्यूस आउटपुट कर रहे होते हैं। तो कंटिन्यूस प्रेडिक्शन के लिए हम रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं। और जो क्लासिफिकेशन होती है वहां पे हम कैटेगोरिकल डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। जब आपके पास ये नो के अंदर हो रिस्पॉन्स के आप क्लासीफाई करने के ये मेल है या फीमेल है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये सेटोसा है, ये वर्सिकुलर है, ये वर्जिनिका है। तो जब आप कैटेगोरिकल डेटा को डील कर रहे होते हैं तो अच्छा ये क्लियर है कि ये दोनों कैटेगरीज लेबल डेटा के ऊपर ही काम करेंगी। लेकिन जो है आपके पास एक दो डोमेन से, एक कंटिन्यूस डेटा के ऊपर, एक कैटेगरिकल डेटा के ऊपर। सो लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा मॉडल की मैथमेटिक्स और जाहिर सी बात है आपको एक बेसिक नो हाउ मिलनी चाहिए कि हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन द डेटा एंड हाउ इट एड वैल्यू टू द बिजनेस, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन आपने अपने एफएससी में पढ़ी होगी। दिस इज अ लाइन इक्वेशन y इक्वल टू, आपने वहां पे mx प्लस सी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है y इक्वल टू a1x प्लस a नॉट। अच्छा दिस इज द आउटपुट, y इज द आउटपुट, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहा जाता है, यहाँ टारगेट वेरिएबल जिसे कहा जाता है, एंड a1x, ठीक है। सो x इज द इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर, जो आपको डेटा सेट के अंदर वैल्यू गिवन जाती है एज इनपुट के तौर पे, ठीक है। और ये ए नॉट इट्स एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, इट्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऐड किया जाता है इसके अंदर, बायस भी इसको आप कह सकते हैं, इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो A1 है दैट इज अ लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो पूरी जो लर्निंग होती है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है मॉडल की,
उस पूरी ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली हम इस A1 की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं कि कौन सी A1 की वैल्यू बेस्ट है जो कि हमारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर फिट हो। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर में हमारे पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज अ लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, अब ये लाइन कहीं पे भी हो सकती थी, आगे पीछे, लेकिन ये बेस्ट लाइन फिटेड है। ठीक है, जब आप इनिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो लाजमी नहीं है कि ये लाइन इन डेटा सेट्स के जो है सेट्स के बीच में हो, ये कहीं पे भी लाया कर सकती है। इस लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है कि इस लाइन और हर डेटा पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो उस हर पॉइंट के दरमियान वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, फिर जाके ये बेस्ट लाइन फिट होती है कि आपका किसी भी पॉइंट की तरफ से वो डिस्टेंस ना हो, और फिर इसके ऊपर जो है एक अनसीन डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके लिए हमें एक एरर फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए जो हमारे पास फेमस कॉस्ट फंक्शन है दैट इज अ मीन स्क्वायर एरर, MSE कहा जाता है। सो इसका फार्मूला ये है कि आप जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू से आउटपुट वैल्यू क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं। तो जो रिजल्ट में आ रहा था वो एक्चुअली एरर होता है, उस एरर को आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी डीलिंग इससे नहीं हो रही होती कि इस पॉइंट के दरमियान और लाइन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो आप इतनी सारी वैल्यूज के साथ आप डील नहीं कर सकते। तो इन सब की जो समराइज रिजल्ट होती है ना, दैट इज MSE वैल्यू, और आप उस MSE वैल्यू को देखते हुए आप इस मॉडल को फर्दर ट्यून कर रहे होते हैं। सपोज y माइनस और इस पूरे मॉडल का अगर एरर ज्यादा आ रहा है, सपोज 0.2 आ रहा है, दैट इज 20% एरर, दैट्स बिग एरर, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फर्दर ट्यून करना पड़ेगा। फिर ट्यूनिंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह, या डेटा इंक्रीज कर लें तरह के, तो फर्दर बहुत सारी टेक्निक। तो ये एक्चुअली बेसिक है लीनियर रिग्रेशन के हवाले से। सो एंड द सेकंड टाइप इज क्लासिफिकेशन। आपके पास एक लेबल्ड डेटा होता है और उनके लेबल्स होते हैं, और आप वो मॉडल को प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और फिर प्रिडिक्शन हो रही थी, प्रिडिक्शन के वक्त आप इसको अनसीन डेटा देते हैं, दैट इज आल्सो लेबल्ड डेटा। अनसीन, आपने इनके ऊपर ट्रेनिंग करवाई और आपने ये दे दिया कि भाई ये इन शेप्स का जो है नाम बताएं, तो इन्होंने प्रिडिक्ट करके बताया कि ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन वर्क कर रही होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम आए तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज द फेमस एल्गोरिथम जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर के अंदर आप टेबुलर डेटा, सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर आप इमेज क्लासिफिकेशन भी बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं। ये सपोज ये डेटा पॉइंट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक वेरिएबल ग्रीन पॉइंट्स है, वो सेकंड वेरिएबल इज द ब्लू पॉइंट्स, और आपने एक हाइपर प्लेन जो है सेट करना होता है, और उस हाइपर प्लेन का जो ये मार्जिन होता है ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। मैक्सिमाइज इन अ सेंस के इन डेटा सेट्स के दरमियान भी जो है डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और इन डेटा सेट के दरमियान भी डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि एक ये वो डिस्टेंस होता है जब एक नया डेटा पॉइंट आएगा प्रिडिक्शन के लिए, तो या तो वो इस तरफ लाई करे या तो फिर इस तरफ लाई करे। अगर वो इन दोनों साइड के दरमियान यहाँ पे कहीं बीच में लाई करता है, तो ये समझ लें कि मॉडल की एक्यूरेसी सही नहीं है। तो इस तरह से ये जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन काम कर रहे होते। जो एग्जांपल है सपोर्ट वेक्टर मशीन का वो यही है कि आप इसको लेबल डेटा देते हैं, एंड उसी तरह से आप न्यू डेटा देके प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, और सिस्टम आपको बता रहा होता है कि ये जो है कैट है या नहीं है, जो भी आप डेटा सेट्स को देते हैं। So SVM algorithms can be used for the face detection, image classification, text categorization as well. आप इसको टेक्स्ट का डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर दें, सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर द क्लासिफिकेशन मॉडल आप जब एरर फंक्शन एवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो रिग्रेशन के अंदर जो एवोल्यूशन मैट्रिक था या जो इक्वेशन थी दैट इज MSE मीन स्क्वायर एरर। क्लासिफिकेशन टाइप मॉडल के अंदर जो एवोल्यूशन मैट्रिक्स होता है दैट इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस मैट्रिक्स को जो है ना ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसके जो पैरामीटर है दैट इज प्रिसिशन, रिकॉल एंड एक्यूरेसी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल वन बाय वन। ठीक है, अच्छा, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव
false negative, true negative. Let's consider a scenario. Suppose आपने अपनी बिल्डिंग में एक अलार्म सेट किया है कि जब भी कहीं पे फायर साइन आए या फायर के हवाले से कोई सिग्नल आए तो ये अलार्म ऑन होना चाहिए। और अगर अलार्म ऑन हुआ है, बजने लगा है और वाकई में फायर भी थी, तो इट्स अ ट्रू पॉजिटिव कि अलार्म जो है रिंग कर रहा है और देयर इज अ फायर, मींस ट्रू पॉजिटिव। बट अलार्म रिंग कर रहा है बट देयर इज अ नो फायर, ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव में चला जाता है। अलार्म रिंग कर रहा है बट देयर इज अ नो फायर, तो ये फॉल्स पॉजिटिव में चला जाता है। बट देयर इज अ फायर बट अलार्म रिंग नहीं कर रहा, देयर इज अ फायर बट अलार्म रिंग नहीं कर रहा, तो दैट इज अ फॉल्स नेगेटिव। बट अलार्म भी रिंग नहीं कर रहा और फायर भी नहीं है, ठीक है, मीन्स के दैट इज ट्रू नेगेटिव। तो जो एक्यूरेसी होती है ना आपकी, वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का सम होती है, ठीक है ना, कि इन दोनों, तो आपकी मॉडल एक्यूरेसी अगर इन दोनों के दरमियान सारे डेटा पॉइंट्स लाए कर जाते हैं तो दैट इज 100% एक्यूरेट मॉडल। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा मॉडल कहीं यहाँ पे लाए करता है पॉइंट्स, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर इन द मॉडल। सो लेट्स प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब ये है कि आपके मॉडल को कितना याद है कि मुझे इसको प्रिडिक्ट करना है कि अलार्म रिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना याद है, मीन्स के ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मीन्स के इसने जो है पॉजिटिव जो है कितने कहे हैं, कितना उसने पॉजिटिव को याद रखा है, ठीक है, तो दैट इज अ प्रिसिशन। रिकॉल मीन्स के उसने कितना याद रखा है और कितना सही याद रखा है, मीन्स याद तो रखा है लेकिन कितना सही याद रखा है, दैट इज अ रिकॉल। प्रिसिशन में क्या था कि आप उसने कितना याद रखा है, रिकॉल इज उसने कितना याद रखा है और कितना सही याद रखा है। मीन्स अगर यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव है, उसने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया है, मीन्स के उसने याद रखा है कि मुझे अलार्म जो है ऑन करना है, लेकिन कब ऑन करना है ये उसने याद नहीं रखा, तो वो फिर जो है फॉल्स पॉजिटिव में चला जाता है। तो ये प्रिसिशन और रिकॉल एंड एक्यूरेसी इज ऑल अबाउट ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। तो ये एक इवैल्यूएशन मैट्रिक है जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये पॉपुलेशन का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे देखें देयर आर पॉजिटिव पॉइंट्स एंड वन नेगेटिव पॉइंट। रियल में कितने पॉजिटिव नेगेटिव थे और प्रिडिक्ट क्या किए, ठीक है। रियल में जो थे 9 पॉइंट पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, उसने 9 के 9 तो पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर लिए कि हाँ ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो नेगेटिव था इसने उसको भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर लिया है, तो मीन्स के उसकी जो प्रिसिशन में है वो कमी आएगी कि उसने कितना याद किया। देखिए प्रिसिशन रिकॉल, लेकिन कितना पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और वो सारे सही प्रिडिक्ट किए, दैट इज अ रिकॉल। देखिए यहाँ पे रिकॉल इज 100%, मीन्स के उसने कोई भी किसी भी पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं कहा, ठीक है ना, किसी भी पॉजिटिव पॉइंट को उसने नेगेटिव नहीं कहा, लेकिन एक नेगेटिव को उसने पॉजिटिव कह दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रिसिशन में तो कमी आ गई है लेकिन रिकॉल में कमी नहीं आई। सेंसिटिविटी भी आपकी 100% है, बिकॉज आपने सारे पॉजिटिव को नेगेटिव सारे पॉजिटिव को पॉजिटिव कह दिया है, लेकिन अगर आप किसी एक पॉजिटिव को नेगेटिव कहते हैं ना तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है ये एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है 9 नेगेटिव पॉइंट्स है और 1 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव था, ठीक है, रिकॉल इज 100%, और यहाँ पे इसने 2 जो नेगेटिव थे उनको उसने पॉजिटिव कह दिया, आपकी प्रिसिशन कम हो गई, ठीक है ना। तो यू मस्ट मेक श्योर कि आपकी प्रिसिशन और रिकॉल जो है वो सही होनी चाहिए, वो अबव 90% होनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रिसिशन ज़्यादा है और रिकॉल कम है, रिकॉल कम है और प्रिसिशन ज़्यादा, आप उनको बैलेंस में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं क्लासिफिकेशन मॉडल्स के हवाले से। और जब हमने एसवीएम के हवाले से डिस्कस किया तो एसवीएम के 2 टाइप्स होते हैं कि लीनियर डेटा के ऊपर डीलिंग करने के लिए जब आप टेबुलर डेटा दे रहे होते हैं लीनियर एसवीएम को, तो वो इस तरह से जो है ना हाइपर प्लेन जो है क्रिएट कर रहा है, आप ये सैंपल है इनको क्लासीफाई करना है, तो मल्टीपल मॉडल की लाइन्स होती हैं, मल्टीपल मॉडल, तो जो आपका गोल है दैट इज टू ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। तो इस तरह
आप फंक्शन कर रहे होते हैं लीनियर डेटा सेट के ऊपर, लेकिन जब आपके पास नॉन लीनियर डेटा होता है तो अब यहाँ पे आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करके जो है ना हाइपर प्लेन के थ्रू आप इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। ये डेटा एक्चुअली इमेजेस का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का डेटा हो सकता है, सेंटीमेंट एनालिसिस का डेटा हो सकता है। तो उसके लिए फिर क्या है, आपको 2D डेटा सेट को फिर आपने क्या करना होता है, डेटा को लेके जाना होता है 3D के ऊपर लेके जाना होता है। इसको कहते हैं जो है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, ठीक है ना, कि आप डेटा अगर एक डायमेंशन में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको नहीं क्लासिफाई, आप डेटा के डायमेंशन इंक्रीज कर लें, ठीक है। बाद दफ़ा डेटा के डायमेंशन डिक्रीज किए जाते हैं, बाद दफ़ा डेटा के डायमेंशन इंक्रीज किए जाते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज के हवाले से तो हमारे पास फेमस एल्गोरिथम्स है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि लीनियर डेटा सेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लीनियर डेटा सेट को डिक्रीज डायमेंशन डिक्रीज करने के लिए, और अगर नॉन लीनियर डेटा सेट को डायमेंशन डिक्रीज करने तो फिर एक डीप लर्निंग की अप्रोच है, दैट इज ऑटो इनकोडर। तो डीप लर्निंग के अंदर फिर नॉन लीनियर डेटा सेट के डायमेंशंस डिक्रीज हो सकते हैं। तो फिर जब आप एसवीएम के डायमेंशंस जो है आप इंक्रीज करते हैं, आप उसको 3 डायमेंशन में ले जाते हैं, तो फिर आपका हाइपर प्लेन जो है इस तरह से बन जाता है। तो फिर आपने क्या किया, एक सर्किल क्रिएट कर दिया कि भाई ये सर्किल के अंदर जो है ये एक क्लास है, सर्किल के बाहर ये दूसरी क्लास है। तो फिर ये इस तरह से एसवीएम के साथ डील किया जा सकता है। तो अगर फर्दर आपने इसको स्टडी करना है तो आप एसवीएम के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। सो अच्छा, एक इन सारे एल्गोरिथम्स के अंदर जो एक एलिमेंट होता है कि हाउ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न्स, ठीक है ना, कि मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम वो लर्न किस तरह कर रहा है, वो जो एक्यूरेसी है ना, कि वो मिनिमम एरर वो जो है रीच कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, दैट इज डील बाय द ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट इज द एलिमेंट इन द मशीन लर्निंग व्हिच मिनिमाइज द एरर, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो एरर को मिनिमाइज करने के लिए काम, आपके पास वेट्स होते हैं, यहाँ पे अगर आप एक इंक्लाइन पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे बीच में ये आपका मिनिमम ये गोल है और आपको यहाँ पे रीच करना है, तो यहाँ पे खड़े हुए आपके पास एक वैल्यू है कि भाई मेरी पहली आइट्रेशन, जब मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया, मेरी पहली आइट्रेशन में मुझे एरर ये मिला है, ठीक है। अब मुझे इस तरह का जंप मारना है, मीन्स कि अब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो लर्निंग के हवाले से जो एलिमेंट जा रहा है, जिसको लर्निंग रेट कहते हैं, लर्निंग रेट एक्चुअली इट्स स्टेप साइज, जो कि ये ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप लेगा नीचे आने के लिए। मेक श्योर, ये हाइपर पैरामीटर की बात है कि मेक श्योर आपका जो स्टेप है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मैं इसकी ज़्यादा मैथमेटिक्स डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो बहुत बड़ी है, इस वेबिनार के अंदर हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि ग्रेडियंट डिसेंट को जो है आप मैथ जो भी एरर फर्स्ट इटरेशन में आ रहा होता है उसको लेके आप मिनिमम एरर तक आ रहे होते हैं, तो आपको ना आगे जाना है ना पीछे रहना है, तो यहाँ पे ये गोल है आपका, यहाँ पे रीच करना है। जब ये आप थ्रेशोल्ड सेट करते हैं किसी भी एल्गोरिथम के अंदर कि भाई मेरे रिग्रेशन के अंदर जो है ना ये थ्रेशोल्ड है, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, तो वो जो थ्रेशोल्ड है दैट इज दिस गोल जो कि आपको सेट करके अचीव करना है। So next classification algorithm is the k nearest neighbor algorithm. k nearest neighbor के अंदर होता है कि आप डेटा सेट को एक क्लासीफाई कर रहे होते हैं, एक नया पॉइंट, एक अनसीन पॉइंट आया होता है आपके लिए, और ये एल्गोरिथम क्या करता है, उसका दोनों क्लासेस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि इस नए एलिमेंट का किस क्लास के दरमियान डिस्टेंस कम है, जिसके साथ डिस्टेंस कम होगा ये नया एलिमेंट जो है वो उस क्लास से बिलोंग करवा देता है, उसके साथ वो लेबल कर देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज आपके पास ये डेटा है, ये कैटेगरी ए है ग्रीन पॉइंट्स, एंड दिस इज द कैटेगरी बी दैट ऑरेंज पॉइंट्स, और एक नई पॉइंट आई है ब्लू। अब आप एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो ब्लू पॉइंट है वो इस ग्रीन से बिलोंग करता है या ये ऑरेंज से बिलोंग करता है? तो के नियरेस्ट क्या करता है, इसको जो है एल्गोरिथम को किसी भी एक कैटेगरी के साथ असाइन कर देता है, और वो जो है थ्रू डिस्टेंस, अब ये जो है लास्ट आउटपुट है, लेकिन ये हुआ कैसे, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सपोज आपने ये न्यू डेटा पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, जो भी था, और उसके बाद जो है आपने नंबर ऑफ के नियरेस्ट नेबर्स जो है ना असाइन करना है। ये के की वैल्यू जो है ये डेवलपर के ऊपर
या मशीन लर्निंग इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करती है। वो क्या, अगर आप 5 सेट करेंगे ना तो इस नए पॉइंट्स के जो सबसे करीब 5 एलिमेंट होंगे ये उनको हाईलाइट कर देगा। आप अगर आप 10 करेंगे तो ये 10 को हाईलाइट करेगा, अगर आप 3 करेंगे तो ये 3 को हाईलाइट, तो जो सबसे करीबी 3 होंगे वो जो है उनको सर्किल कर देगा। और ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। इसकी इक्वेशन ये नीचे मेंशन है। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है कि इस पॉइंट से इन हर पॉइंट का डिस्टेंस फर्दर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि इन पॉइंट्स, अच्छा यहाँ पे देखें कैटेगरी बी जो है उसके कितने नियरेस्ट नेबर है, ये 2 हैं, और कैटेगरी ए के कितने नियरेस्ट नेबर है, 3 है। तो मेजॉरिटी कहाँ पे जा रही है, ए में जा रही है। तो के नियरेस्ट नेबर क्या करेगा, इस जो पॉइंट है उसको ग्रीन के साथ अटैच कर देगा। मीन्स कि जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया पॉइंट्स का और उसके बाद जब वो पॉइंट सर्किल हो गए तो उसके बाद वोटिंग होती है कि किस क्लास के ज़्यादा मेंबर जो है ना इससे करीब हैं। तो क्लास ए के ज़्यादा मेंबर इसके करीब हैं तो ये पॉइंट क्लास ए से बिलोंग करते हैं। हाउ दिस इज द वे हाउ ए नियरेस्ट नेबर वर्क्स। तो उसके बाद देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, दैट इज द डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. Decision tree work as a simple as a tree structure, and the inner part of the decision tree is like a if and else conditions. कि आप जो है एक रूट वैल्यू होती है और उसके बाद आपके डिसीजन नोड्स होती हैं, लीफ नोड्स होती हैं। डिसीजन नोड पे जो है आके आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आगे फर्दर नहीं मूव हो रही तो वो लास्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। सपोज करें कि आपको एक नई जॉब की ऑफर आई है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये मुझे ये जो जॉब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में डेटा आपने फीड कर रहे हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है वो इवेलुएट कर रहे हैं। सैलरीज रेंज बिटवीन $50,000 to $80,000। अगर येस है तो आगे जाओ, अगर नो है तो डिक्लाइन ऑफर। मीन्स के जो वो ऑलरेडी काम कर रहा है वो एटलीस्ट $50,000 पे तो काम कर रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो सोचेगा। अगर रेंज के दरमियान नहीं है तो नो, डिक्लाइन ऑफर, अदरवाइज नेक्स्ट आप आगे जाएंगे। ऑफिस नियर टू होम, अगर नो डिक्लाइन, अगर घर से करीब नहीं है तो डिक्लाइन कर दे, अगर येस तो नेक्स्ट। प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटी, क्या कंपनी कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, नो, डिक्लाइन ऑफर, अगर येस तो फिर ऑफर एक्सेप्ट। तो दिस इज अ वे हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। वो इस तरह की कंडीशंस लगा के जो है ना वो डेटा पॉइंट्स को चेक कर रहे होते हैं और फिर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। यहाँ पे तो 2 क्लासें, एक्सेप्ट ऑफर या जो है डिक्लाइन ऑफर। आपके मल्टीपल जो है क्लासेस हो सकती हैं, उनके दरमियान इसका भी जो है स्प्रेड हो सकता है। तो दिस इज द वे हाउ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम वर्क्स। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा फेमस एल्गोरिथम है जो कि मार्केट बास्केट एनालिसिस या कस्टमर एनालिसिस के अंदर जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है मेजरली रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज कर रही होती है। आप जितनी भी उठा लें दराज के, अगर आप किसी टेक्निकल टीम से पता कर लेंगे तो वो ई रैंडम फॉरेस्ट, फेसबुक रैंडम फॉरेस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं डिफरेंट वोटिंग एल्गोरिथम से। इसमें होता ये है कि आपको ट्रेनिंग सेट प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट सेट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग डेटा जो है वो एक सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। सपोज एक डेटा है उसके 3 सेगमेंट बन गए, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और हर डेटा सेगमेंट के लिए एक अलहदा डिसीजन ट्री बनता है। ठीक है ना, तो हर डेटा सेगमेंट के लिए एक अलहदा डिसीजन ट्री क्रिएट होती है और हर डिसीजन ट्री जो है अपना क्लासिफिकेशन करके एक रिजल्ट जनरेट कर रही होती है। और लास्ट में ये रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, वोटिंग करता है, एवरेज करता है कि सपोज वोटिंग कर ली, अगर 3 प्रिडिक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है सपोज डेटा सेट के ऊपर, अगर 2 ने कह दिया मेल और 1 ने कहा फीमेल तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करेगा, इट्स अ मेल। ठीक है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज here is an instance is a fruit bucket। यहाँ पे डिफरेंट डेटा सेट है और ये डिफरेंट ट्रीज में ये डिवाइड सेगमेंट हो गया डेटा सेट। अब ये ट्री क्या कर रही है, क्लासीफाई कर रही है। एक ट्री ने कहा दिस इज एन एप्पल, दूसरी ने कहा दिस इज एन एप्पल, एंड थर्ड ने कहा दिस इज अ बनाना। ठीक है, तो मेजॉरिटी वोटिंग ने क्या कहा, फाइनल क्लास क्या हुई, दिस इज एन एप्पल। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है इस तरह से काम कर रहा होता है। बैंकिंग के अंदर जब आप बैंकिंग भी इसको यूज कर रहे होती हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर आप
हमें इस कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है, वो भी ये रैंडम फॉरेस्ट यूज करे। उसके डिफरेंट उसके वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के थ्रू रैंडम फॉरेस्ट को देते हैं, और रैंडम फॉरेस्ट के हर ट्री वो जनरेट कर रही होती है। डिफरेंट एक एल्गोरिथम, मतलब एक डिफरेंट एक लर्निंग ट्रैट होता है जिसके दरमियान वो डिसीजन आ रहा होता है, तो कि इस पर्सन को लोन देना है या नहीं देना है। तो मल्टीपल जो है डोमेन्स के अंदर इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। सो यहाँ तक था हमारा सुपरवाइज का। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, दैट इज अनसुपरवाइज। ठीक है, दिस इज अनसुपरवाइज। अगर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुपरवाइज में क्या होता है एक्चुअली, जो मशीन है वो उसको सुपरविजन अवेलेबल होती है, या अगर आसान लफ्ज़ों में आप सुनना चाहें कि डेटा जो होता है वो लेबल्ड होता है। मीन्स कि मशीन को बताया जाता है कि ये डेटा पॉइंट्स इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये डेटा पॉइंट्स इस क्लास में। अब वो जो लेबल है ना वो हट गया है। अब मशीन के पास जो डेटा है वो अनलेबल्ड है, एक पॉइंट्स हैं, एक फीचर्स हैं, और उसके पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि ये क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। अब मशीन खुद से जो है अपने एल्गोरिथम्स वगैरह जो है जो भी अप्लाई करके वो मशीन लर्न करेगी और वहाँ से इंसाइट्स निकालेगी। तो अनसुपरवाइज के अंदर मेजरली दो एल्गोरिथम्स, दो टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज द क्लस्टरिंग एंड अनदर इज द एसोसिएशन। Clustering actually is a method of grouping the objects in a cluster such that objects with the most similarities remains into the group. वो क्या करता है, एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ग्रुप कर देता है, और वो ग्रुप के किस बेस पे करता है, वो डिस्टेंस के बेस पे करता है। ठीक है। और दूसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन ये है कि वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है। ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप फाइंड करता है वेरिएबल्स के दरमियान इन डेटा सेट। सपोज कि आपने अगर दूध खरीदा है तो देयर इज अ चांसेस आप ब्रेड भी खरीदेंगे, ठीक है, या दही भी खरीदेंगे। तो इस तरह के रूल्स हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो हियर इज द के मीन क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द फेमस एल्गोरिथम इन द क्लस्टरिंग डोमेन। के मीन क्लस्टरिंग क्या करता है, वो जैसे ऑलरेडी डिस्कस की इन प्रीवियस स्लाइड, कि वो डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप्स में, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस होता है दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। शुरू लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। मैंने इस एल्गोरिथम की जो है आइट्रेशंस यहाँ पे रखी हुई हैं, प्लेस की हुई हैं। ठीक है, सपोज ये रियल टाइम एल्गोरिथम है, ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, और एक्चुअल होता क्या है, एक्चुअली रॉ डेटा है, एल्गोरिथम आपने क्लस्टरिंग अप्लाई किया, और क्लस्टर ने क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया कि ये जो है अलग एक फ्रूट टाइप है, ये अलग एक फ्रूट टाइप है, ये एक अलग फ्रूट टाइप है। ठीक है, तो दिस इज द वे एक्चुअली जो है के मीन क्लस्टरिंग वर्क्स। सो ये स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे नहीं थ्योरी डिस्कस कर रहा, हम विजुअली देख रहे होते हैं। सपोज ये आपके पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, और आप मशीन लर्निंग के थ्रू, क्लस्टरिंग के थ्रू आप चाह रहे हैं कि मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, यू वांट टू ग्रुप दीज डेटा पॉइंट्स इन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अच्छा, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स में इनको ग्रुप करना है, ये हाइपर पैरामीटर का पार्ट है। आप चाहें तो 2 के की वैल्यूज ऐड कर दें क्लस्टर, आप 3 वैल्यूज ऐड कर दें, आप 4 वैल्यूज ऐड कर दें, आप 5 वैल्यूज कर दें। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन एक जब आप इसको विजुलाइज करते हैं डेटा सेंटर, आप एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपको नजर आ रहा है यार मेजरली जो है ना, जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 क्लस्टर। तो आप इस डेटा को देख के आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने के वैल्यूज प्लॉट करनी है। सो यहाँ पे हमने 2 के की वैल्यूज प्लॉट की, दैट इज M1 एंड M2। ठीक है, सपोज रैंडमली वो जो होती हैं के की वैल्यूज हैं, वो रैंडमली प्लॉट की जाती हैं। आपको स्पेसिफिक पोजीशन इसको नहीं बताते, वो कहीं पे भी पुट की जा सकती हैं, वो यहाँ पे दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अब ये के की वैल्यूज जो है प्लॉट की गई। अब होगा क्या, अब होगा ये कि इन दोनों लाइन के पॉइंट के दरमियान, ब्लू एंड ऑरेंज, वी विल ड्रॉ अ मीडियन लाइन। ठीक है, हमने क्या किया, मीडियन लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मीडियन लाइन, अब इस मीडियन लाइन से क्या होगा, अब हमारी ये अजम्पशन है कि जो मीडियन लाइन से अबव की जो पॉइंट्स हैं वो सारी ब्लू से बिलोंग करती हैं, और बिलो द मीडियन लाइन ऑल द पॉइंट्स बिलोंग्स टू द ऑरेंज क्लस्टर। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, उसी हिसाब से जो हमारी अजम्पशन थी, हमने उसको उस हिसाब से कलर भी कर दिया।
कि भाई ऊपर वाली जो पॉइंट्स हैं वो ब्लू हैं और नीचे वाली पॉइंट्स जो है वो ऑरेंज है। उसके बाद देन हमने क्या किया, वो जो सेंट्रॉइड हमने प्लेस किया था, अब हम उस सेंट्रॉइड की पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे, उसको सेंटर पे लेके जाएंगे। सेंटर के मीन्स के जहाँ पे हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली वो कहलाती है, जहाँ पे उसका वो प्लेसमेंट करवाई जाती है। तो फिर ये मीडियन की वैल्यू जो है ना शिफ्ट होगी, अपना सॉरी सेंट्रॉइड की पोजीशन जो है वो शिफ्ट होगी। अब सेंट्रॉइड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो जब पोजीशन शिफ्ट हो गई तो फिर जाहिर सी बात है वो जो मीडियन लाइन हमने स्केच की थी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो दोबारा रीड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो पोजीशन शिफ्ट हो गई है तो मीडियन की लाइन दोबारा शिफ्ट होगी। अब यहाँ पे देखें, जब हमने नई मीडियन लाइन शिफ्ट की तो वो जो एक ऑरेंज डॉट था वो ब्लू की तरफ चला गया है, और जो दो ब्लू डॉट थे वो ऑरेंज की तरफ चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है अब जो है इनको हमें इन क्लस्टर से बिलोंग करवाना पड़ेगा, तो इनको रिकलर करना पड़ेगा, और हमने इनको रिकलर उस हिसाब से कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगेन द शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रॉइड, और हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ उसको चेंज करना है, सेंट्रॉइड की पोजीशन चेंज। ये तब तक हम करते रहते हैं, ये भी सवाल बनता है कि हम ये कब तक करते रहेंगे। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो है उन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आ जाती फिल्टर्स की, और सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं हो जाता, मिनिमम इक्वल नहीं हो जाता उन सेंटर्स तक। तो हमने दोबारा अगेन ये मीडियन लाइन की है, और ये यहाँ पे हमें लगा कि हाँ अब जो है, अच्छा ये कब तक करते रहते हैं, जब वो जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट्स के दरमियान फ्रॉम पॉइंट टू सेंटर वो चेंज, सपोज आपने एक आइट्रेशन में चेंज किया, जो मिनिमम डिस्टेंस था दैट इज 0.01, नेक्स्ट आइट्रेशन में डिस्टेंस 0.01, जब ये डिस्टेंस चेंज होना खत्म हो जाए ना, समझ लें कि अब आपके जो क्लस्टर्स है ना वो फाइनल स्टेज पे आ गए, और फिर आप उसको आइट्रेशन क्लोज कर लें। तो यही एक्चुअली जो है थ्रेशोल्ड भी रखा जाता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में। तो इस तरीके से जो है ना मशीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। फिर जब आपके पास डोमेन नॉलेज होती है तो आप कहते हैं कि हाँ भाई ये जो है स्ट्रॉबेरीज हैं और ये एप्पल्स है ना, और जो नया डेटा एलिमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी एक न्यू एक वो होगी प्लेसमेंट होगी उसकी एक डिस्टेंस की, तो वो यहाँ पे या यहाँ पे प्लेस करेगा। अगर वो बीच में कहीं प्लेस कर रहा है तो फिर वो इनोमलीज में आ जाएगा, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज एसोसिएशन। एसोसिएशन इज विच एटम्स आर फ्रीक्वेंटली परचेज। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप 2-3 एटम खरीदते हैं, और ये आपकी जो है कस्टमर 1 मिल्क ब्रेड सीरियल एंड मिल्क ब्रेड, शुगर एंड एग्स, मिल्क ब्रेड, बटर। अब इन कस्टमर की बास्केट को मार्केट क्या करती है, एनालाइज करती है कि ये मेरा जो कस्टमर है जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये क्या खरीदेगा, और मैं इसको वो चीज़ें जो है डिस्प्ले करवाऊँ। अब जब भी सुपर मार्केट जाते हैं तो आप को जो है, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं दराज के ऊपर या कहीं पे भी ना, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को ज़्यादा देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको उसके एड आना नज़र आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो एनालिसिस बैक एंड पे हो रही है एसोसिएशन रूल माइनिंग की, कि आप क्या खरीदेंगे आपके बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये एक्चुअली होता है कि आपने मिल्क खरीदा है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप क्या खरीदेंगे। ब्रेड की प्रोबेबिलिटी 71% है, एग की 43 है, और टिश्यू रोल की 29% है। तो ये एक्चुअली ये इंक्लूड किए जाते हैं, ये एप्रियोरी एल्गोरिथम के थ्रू जो है प्रेडिक्ट किया जाता है कि आप कस्टमर की बास्केट एनालिसिस हम कर सकें कि ये कस्टमर जब आएगा नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें खरीदेगा। तो ये एक एल्गोरिथम है जो कि मार्केट के अंदर अप्लाई किया जाता है। So we have discussed supervised and unsupervised learning, and now that is last category, that is a reinforcement learning. Actually reinforcement ये है कि जैसे आप कोई एक्शन घर में कर रहे होते हैं और बच्चा आपको देख के जो है ना वो सेम एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फिर आप बच्चों को कहते नहीं आपने सही नहीं किया, आप दोबारा सही करें ना। तो दैट्स एक्चुअली आप एक मशीन को जो है ना सिखा रहे होते हैं कोई भी चीज़ काम करना, और आप रिवॉर्ड सेट करते हैं। अगर मशीन ने सही से काम किया है तो आप उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं, अगर आपने उसने वो एक्शन सही परफॉर्म नहीं किया तो आप उसको नेगेटिव रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। इट्स एक्चुअली रिवॉर्ड बेस्ड गेम लर्निंग, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि आप एक ग्रिड सेट हुआ होता है और वो पॉइंट्स और ऑटोमेटा मशीन के थ्रू जो है ना ये जो स्टेट्स हैं S1 S2 S3, एक्चुअली ये तो ग्रिड आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन मशीन के अंदर जो है एक्चुअली ऑटोमेटा जो ग्राफ होता है ना ग्रिड,
ग्राफ होता है, आप एक पोजीशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आप जो है ट्रांजिशन करके जाएं, ये उसी तरह से के लिए वर्क कर रहा होता है। तो हर स्टेट का आप लिखा हुआ, S9 से आप अगर आप S4 पे जाना चाह रहे हैं या S जो है 10 पे जाना चाह रहे हैं, तो हर स्टेट के ऊपर जो है ना रिवॉर्ड रखा हुआ है। यहाँ पे सपोज ये रिवॉर्ड रखा हुआ है और यहाँ पे ये रिवॉर्ड -1 रखा है, अगर वो यहाँ पे चला गया तो उसको माइनस रिवॉर्ड मिलता है। तो होता ये कि एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है एनवायरनमेंट के अंदर और एक्शन के बेस पे उसको रिवॉर्ड फीड कर रहा होता है। तो फिर उसको अंदाजा होता है, अच्छा मुझे मैंने S5 पे गया, मुझे -1 मिला, अब मुझे S5 पे नहीं जाना, नेक्स्ट टाइम वो S10 पे जाएगा। S10 के बाद जो है जब वो उसके पास दो पाथ है S6 और S11, जो दोबारा स्टार्ट हुआ, अब इसको ये पता चल गया कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना, अब मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चला गया, रिवॉर्ड मिला, उसके बाद ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा, इसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये दोबारा ऊपर चला गया तो उसको फिर दोबारा -1 मिला। तो इसको एक ना एक्चुअली ये पाथ लर्न कर रहा होता है कि मुझे यहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड। तो इस तरह से जो है ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क कर रही होती है। सो दिस इज अ मशीन लर्निंग प्रोसेस। मैंने डेटा साइंस की प्रोसेस के अंदर एक डिस्कस किया था डिटेल में। इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट डेटा मीन्स कि आप कोई भी डेटा सेट इंपोर्ट करके फीड करवा दें। डेटा क्लीनिंग के अंदर स्टेप्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग अ मॉडल, मॉडल के अंदर जो है ना बेस्ड ऑन द डेटा कि आपका डेटा किस टाइप का है, लेबल्ड है, अनलेबल्ड है, टेक्स्ट है, नंबर है, आप देख के जो ऊपर हमने मॉडल्स डिस्कस किए हैं आप वो मॉडल्स अप्लाई जो है यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग के अंदर आप टेस्ट मॉडल को टेस्ट कर रहे होते हैं। मॉडल टेस्ट अगर वो रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, तो आप उसको उस हिसाब का डेटा प्रोवाइड करते हैं, और रिग्रेशन क्लासिफिकेशन मॉडल है तो आप उसको उस हिसाब का डेटा मीन्स के अनसीन डेटा के ऊपर मॉडल आपका कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद होती है आपकी इफिशियंसी। इम्प्रूव इफिशियंसी के अंदर जो है आपके कुछ बायस एंड वेरिएंस के ट्रेड ऑफ्स हैं या कुछ और चीज़ें वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो है आपको जाहिर सी बात अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको डेटा सेट्स चाहिए कि हम इनिशियल, जाहिर सी बात आप अभी इस लेवल पे नहीं कि आप अपना डेटा सेट क्रिएट कर सकें, तो यू शुड हैव अ डेटा सेट टू वर्क ऑन द मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। तो देयर आर पॉपुलर वेबसाइट्स फॉर द डेटा सेट्स जहाँ पे जाके आप वो डेटा सेट जो है डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। Kaggle इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन डेटा साइंस। ये गूगल कंपनी का बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी रिपोजिटरीज डेटा सेट्स की मिल जाएंगी, उनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, कर्नल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन होते हैं, कोई भी कंपनी आके अपना डेटा सेट और प्रॉब्लम पिच करती है और यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं उस कंपटीशन को वो पिच करते हैं और अपने सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जिसका ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और डेटा सेट्स भी अवेलेबल। न्यूमेरिकल मिक्स डेटा, ठीक है, डेटा मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट, उसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, किस टाइप का है। तो ये भी एक फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे एल्गोरिथम्स एज वेल एज डेटा सेट्स अवेलेबल आपको मिल जाए। अमेजोन वेब सर्विसेज के ऊपर भी जो है आपको डेटा सेट की रिपोजिटरी पूरी अवेलेबल है, सेंटीमेंट तो उसकी प्रोडक्ट के हवाले से। तो यहाँ पे भी आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के डेटा सेट हैं, आप गूगल में जाके लिखें गूगल डेटा सेट सर्च, तो आपको एक डेटा सेट के हवाले से सर्च ओपन करके दे देगा। देन आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है वो डेटा अपलोड डाउनलोड और ढूंढ सकते हैं, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ओपन डेटा है, यहाँ पे भी आपके मल्टीपल डेटा सेट्स अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऑसम पब्लिक डेटा सेट्स, यहाँ पे भी आपके पास एक फॉरम है, ठीक है, यहाँ पे भी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर, कम्प्लेक्स नेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा पोर्टल है। यहाँ पे भी आप जाके ये पावर्टी एलिवेशन के हवाले से डेटा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तक बहुत डिटेल्ड डेटा है। इसको देख के क्लासिफिकेशन अपनी हाइपोथेसिस रन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप इसको यहाँ से डेटा डाउनलोड करके, ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ये डाउनलोड का, यहाँ से जाके आप ये डेटा सेट डाउनलोड, तो ये प्योरली पाकिस्तानी डेटा सेट है, ठीक है। उसके अलावा एसक्यूएल के डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल इज आल्सो मशीन लर्निंग
फोरम जहाँ पे आपको एल्गोरिथम्स के कोड्स रिपोजिटरीज वगैरह अवेलेबल होंगी, इनको भी यूज़ कर आप किसी भी, जब आप पाइथन पे पाइथन के थ्रू, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, आप आर पे भी काम कर सकते हैं। आर इज एक्चुअली यूजर फ्रेंडली, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो कंपनी ओनर टाइप होते हैं, उनको आर इज अ सिंपल, वहाँ पे ज़्यादा सिंटेक्स का मुश्किल नहीं होती, तो लोग आर भी यूज़ करते हैं। और जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते, वो जो है ड्रैग एंड ड्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। तो आपके पास डिफरेंट डेटा सेट रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी कोई भी डेटा उठा के अपने मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, देयर आर चांसेस, मोर चांसेस कि आपके डेटा के अंदर जो है ना मिसिंग वैल्यूज हों, इस तरह यहाँ पे रेड हाईलाइटेड है। तो आप इन मिसिंग वैल्यूज को जो हैंडल करने का तरीकेकार है ना, दो ही तरीके, या तो आप उन एंट्रीज को, अगर इस एंट्री में जो है ना ये एक मिसिंग वैल्यू है और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, या तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है, या दूसरा ये है कि अगर आप उसको डिलीट नहीं करना चाह रहे, डिलीट करने से आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करें, डेटा की मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो मीन की वैल्यू हर जगह पुट करें। तो ये दूसरा तरीका है कि आप डेटा सेट की मीन की वैल्यू कैलकुलेट करें, जब आप स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, तो आप मीन कैलकुलेट करके इन जो है वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो ये दो तरीकेकार हैं मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए। दूसरा, अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है, टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है ना, और आपको पता है कि मशीन लर्निंग जो है उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए। मशीन लर्निंग टेक्स्ट नहीं जानती, मशीन लर्निंग इमेजेस नहीं जानती, मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स जानती है। उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो जो मशीन लर्निंग को जब हम डेटा फीड करते हैं, एक्चुअली वो वेक्टर्स होते हैं, तो और वो नंबर की सूरत में होता है। तो हमें जो है ये टेक्स्ट डेटा है, तो ये हम मशीन को फीड नहीं कर सकते, तो इसको हम देखें, अच्छा इसको हम वन हॉट, अगर ये एक टेबुलर डेटा के अंदर ये एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर टेक्स्ट है और बाकी सारे नंबर हैं, तो दिस इज ये अपॉर्चुनिट सॉरी ये अप्रोच है कि आप उस कॉलम को वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू जो है आप कन्वर्ट करते हैं। वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होती है ना, यूनिक क्लासेस, वो उतने कॉलम बना देता है, और फिर जिस एंट्री का नाम होता है उसके सामने वो वन कर देता है, बाकी को जीरो। सपोज ये यहाँ पे देखें, स्टेट, गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट इंक्रीमेंट, इनकॉर्पोरेशन और प्राइवेट, तीन क्लासेस हैं, और यहाँ पे पहली एंट्री स्टेट गवर्नमेंट, उसको वन कर दिया, बाकियों को जीरो कर दिया। सेकंड एंट्री सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय के नीचे वन करेगा, बाकियों को जीरो कर देगा। तो ये आपके पास जो है कैटेगरिकल डेटा है। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है लेकिन वो उसके अंदर कैटेगरीज नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है क्या है, उसके अंदर एड्रेसेस आ रहे हैं, या उसकी फेवरेट जो है कोई भी चीज़ का नाम आ रहा है, उसके अंदर कैटेगरीज आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो उस केस में फिर क्या करते हैं हम, जो है ऑर्डिनल इनकोडिंग करते हैं, लेबल इनकोडिंग कर रहे होते हैं, हम नंबर इनकोडिंग, उसको नंबर प्रोवाइड, नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी वो एंट्रीज हैं उसको हम नंबर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कैटेगोरिकल है तो हम इसको वन हॉट इनकोडिंग करते हैं। उसके बाद जो डेटा सेट आपके पास आ रहा होता है, हम उसको स्प्लिट करना पड़ता है। ओरिजिनल डेटा सेट को हमें डिवाइड करना पड़ता है ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट के अंदर, और फर्दर जो ट्रेनिंग सेट होता है उसको हमने दो पार्ट में क्रिएट करना, सब डिवाइड करना पड़ता है, ट्रेनिंग सेट एंड वैलिडेशन सेट। अच्छा, शुरू में सिर्फ ये दो पार्ट होते थे, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। आफ्टर सम रिसर्च ये पता चला कि भाई जो ट्रेनिंग सेट होता है ना, उसके अंदर जो है जो मॉडल है वो चीट कर रहा होता है, वो डेटा टेस्ट का देख रहा होता है। तो ये एक काम किया जाए, तो जो टेस्टिंग के अंदर उसको एक वैलिडेशन का डेटा अलग दिया जाए, और जो टेस्ट डेटा है ना वो मॉडल को आप ट्रेनिंग से पहले दिखाएं नहीं, आप उसको प्रोवाइड ही ना करें, उसको अलग आप ड्राइव पे रख दें। जब वो मॉडल ट्रेन कर जाए, एल्गोरिथम लर्न कर ले, जब वो प्रिडिक्ट करने लगे, तो उसको आखिर में वो डेटा दिखाएं, तो फिर ये उसके लिए अनसीन डेटा होगा। तो मॉडल एक्चुअली चीट नहीं करेगा, जब मॉडल चीट करता है तो वो ओवरफिट कर देता है। तो ये एक डेटा स्प्लिटिंग टेक्निक है जो कि आपको अप्लाई करनी पड़ती है, डेटा स्प्लिट करके आप फर्दर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम फीचर स्केलिंग करते हैं। फीचर स्केलिंग का मतलब ये है कि आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होते हैं,
ताकि जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर डेटा अवेलेबल हो। और सपोज आप एक आरजीबी इमेज को डील कर रहे हैं और उसकी एक रेंज ग्रेस हर एक कलर की 0 से 255 है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको स्केल डाउन कर देते हैं 0 से 1 के दरमियान, तो और वो इक्वली हर सैंपल इक्वली स्केल डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, अब जो मॉडल है उसको 0 और 1 के दरमियान नंबर को डील करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, कंप्यूटिंग जो है पावर आपको कम चाहिए होगा और आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और डेटा एलिमेंट्स के ऊपर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वली जो है ना स्केल डाउन हुई है। तो ये स्केलिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप करते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग के जो है वो दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर होता ये है कि आप जो डेटा रीस्केल करते हैं उसके अंदर मीन 0 कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर देते हैं, ठीक है। इस मीन ऑफ 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता यह है कि आप हर उस डेटा सेट की जो है ना आप मीन कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर हर सैंपल से मीन डिवाइड करते हैं और मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका पूरा डेटा जो है स्केल डाउन हो जाता है। और दूसरा तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो रीस्केल कर देता है पूरे डेटा सेट को 0 और 1 के दरमियान। तो ये दो टेक्निक है फीचर स्केलिंग के लिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप के लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, जब आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है और अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 3 मॉडल की रिजल्ट्स हैं। एक्स यहाँ पे एक ये है, लेफ्ट वन, मिडल वन एंड द राइट वन, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा मॉडल कौन सा है? आपके हिसाब से यहाँ पे बेस्ट मॉडल कौन सा है? आपके सामने 3 मॉडल हैं, लेफ्ट, राइट या मिडल वन। होस्ट, आई थिंक चैट आपने ओपन कर लिए। Yes, sir. It is open. ओके, थर्ड, गुड बैलेंस। जी, बिल्कुल। ये जो है बायस और वेरिएंस एक फेमस प्रॉब्लम है आपके मॉडल के अंदर। होता ये है कि दिस इज आइडियल, ये जो हाई वेरिएंस है मीन्स के आपका मॉडल जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली सेम। इसका ट्रेनिंग के अंदर इसने बिल्कुल 100% एक्यूरेसी अचीव की और सही से प्रेडिक्ट करा है। लेकिन जब ये मॉडल अनसीन डेटा के पास जाएगा तो वो पॉइंट कहीं और ही लाए कर रहे होंगे और ये मॉडल उनको प्रिडिक्ट नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है, आप ओवर फिट कर जाते, ठीक है ना। मीन्स के ट्रेनिंग के वक्त तो आपकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी थी, लेकिन टेस्टिंग के वक्त जो है ना आपकी एक्यूरेसी आपने 100% अचीव कर ली, टेस्टिंग के अंदर जो आप 50% पे आके चले गए, 40% पे आके। तो हमें हाई वेरिएंस मीन्स के बिल्कुल हाई वेरिएंस का मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मॉडल भी नहीं बिल्ड करना के जो कि बिल्कुल ए टू जेड, हमें थोड़ा सा ना ए टू जेड पैटर्न डिटेक्ट कर रहा, हमें थोड़ा सा ट्रेड ऑफ रखना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई बायस एक मॉडल आपने प्रेडिक्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन आपने डिक्लेयर कर दी, वो भी हमारे लिए नहीं है। ये क्या होता है, ये अंडर फिट कर, ये आपको ट्रेनिंग में जो है ना वो बिल्कुल लो एरर दे रहा होता है, बिल्कुल 30% 40%। तो अंडर फिटिंग तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती। आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आप थोड़ा सा लो बायस, थोड़ा सा लो वेरिएंस, तो एक बैलेंस के थ्रू जो है ना आप इस मॉडल को फिट कर रहे हो। तो कैसे अगर हमारा मॉडल हाई वेरिएंस पे चला जाए या हाई बायस पे चला जाए तो हम कैसे इसको डील करें? तो बहुत सारी हाइपर पैरामीटर टेक्निक्स हैं, जो बहुत सिंपल टेक्निक है, जो आसान, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा सेट। जब आप डेटा सेट की साइज इंक्रीज करते हैं तो उस वक्त फिर ये है कि देयर आर मोर चांसेस के ये आपकी ओवर फिटिंग या जो वेरिएंस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए में एक ही डेटा सैंपल है
और देयर आर मल्टीपल मॉडल्स जो कि इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, ठीक है, और कोई भी मॉडल सही से इसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली अंडर फिट कर रहा है डेटा, ठीक है। और जब आपने डेटा पॉइंट्स बढ़ा दिए, तो जब आप डेटा सेट पॉइंट्स मीन्स के डेटा सेट के अंदर इन्हांसमेंट हुई है, तो जो मॉडल्स हैं वो थोड़ा सा जो है अब कुछ ना कुछ फिट होने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब आप सी में जाएंगे तो वेल एंड गुड अच्छे से मॉडल्स ने इसको लर्न किया है। तो इस तरह से जो है आप डेटा सेट इंक्रीज करने से जो है ना, आप जो अंडर फिट मॉडल है आप उसको उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब इम्प्रूव मॉडल इफिशिएंसी, जब आपने टेस्टिंग वगैरह कर ली, अब आप इफिशिएंसी करना इंक्रीज करना चाह रही हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास टेक्निक है मॉडल की इफिशिएंसी को फर्दर और इफिशिएंट करना, केफुल टेस्टिंग। केफुल टेस्टिंग ये है कि जो ट्रेडिशनल होता ये था कि आपका पूरा डेटा सेट था, उसका 70% जो डेटा होता है वो ट्रेनिंग के लिए होता है और 30% टेस्टिंग के लिए। जो टेस्टिंग डेटा होता था, अच्छा अब मशीन ने तो ट्रेनिंग किसके ऊपर की है, मशीन ने लर्निंग की है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, मशीन ने टेस्टिंग डेटा देखा ही नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि वो अंडर फिट कर जाए या ओवर फिट कर जाए, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है केयरफुल टेस्टिंग के भाई, आप जो है ना मशीन को सारे डेटा के ऊपर ट्रेन करवाएं और सारे डेटा के ऊपर टेस्ट करवाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये पूरा डेटा सेट है, हमने यहाँ पे 20% टेस्टिंग के लिए रखा और 80% ट्रेनिंग के लिए। अब दूसरी आइट्रेशन में हमने जो वो प्रीवियसली टेस्टिंग में था, अब वो ट्रेनिंग का पार्ट है, नेक्स्ट फेज हमने 20% को हमने टेस्टिंग के अंदर ऐड कर दिया और रिमेनिंग ट्रेनिंग। उसी तरह से हमने अब हर चंक हर आइट्रेशन में जो है ना वो टेस्टिंग में भी आ रहा है और ट्रेनिंग में भी आ रहा है। अब जो मॉडल है ना उसने अपना 100% डेटा देख लिया है, तो इस टेक्निक के थ्रू देयर आर चांसेस कि जो मॉडल है वो अंडर फिट नहीं होगा, अनसीन डेटा के ऊपर भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। चलिए जी, हमने अच्छे खासे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न कर लिए हैं। अब क्या एक सवाल बनता है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन डेटा साइंस यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। आपने सब बताते दिए कि इतने सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन डेटा साइंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम देना, ठीक है। सो देयर आर मेजर सिचुएशंस जहाँ पे आपको मॉडल सिलेक्शन के किस डेटा साइंस की अप्रोच के अंदर कौन सा मॉडल हमें अप्लाई करना है। अगर आपके अंदर सिर्फ इज दिस ए और बी आपने ये प्रेडिक्ट करना है क्वेश्चन आपका, तो आप चले जाएं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर, इज दिस डिफरेंट, ठीक है ना, कि क्या ये एग्जिस्टिंग से डिफरेंट है, आप एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम में चले जाएं, हाउ मच और हाउ मेनी, ठीक है ना, एक फ्यूचर क्वांटिटी की बात की जा रही है कि फ्यूचर के अंदर क्या साइज होगी, तो उसके लिए आप रिग्रेशन एल्गोरिथम्स हैं, हाउ इज दिस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, कि आपका जो इस तरह का डेटा है आपको नहीं पता इसको ऑर्गेनाइज, क्योंकि लेबल्स नहीं है, ऑर्गेनाइज किस तरह से करें, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अवेलेबल है। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे आगे क्या करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज देयर फॉर यू। तो ये कुछ सवालात हैं। इसके अलावा जाहिर सी बात आपको एक्सपेरिमेंट जो है करने पड़ते हैं, तो इसके थ्रू आप इन एल्गोरिथम्स को डेटा साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज के अंदर अब मेरी जो है ये लास्ट एक या दो स्लाइड्स हैं। आप अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है लेकिन वो प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तो देयर आर ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स, आप वो काम कर सकते हैं। अज्योर मशीन लर्निंग इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, आटो गूगल ऑटो में इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल। आप यहाँ पे वेका पे जा सकते हैं, दिस इज अ वेका, ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है आपके लिए। K9 यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट लोड एक आइकन बने होते हैं, आप उन आइकन को जो है इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं और उनको आपस में कनेक्टिविटी करके उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है आर के अंदर करनी है, तो आर स्टूडियो आपके पास अवेलेबल है, रैपिड माइनर आपके पास अवेलेबल है, और इसके अलावा जो है ये नीचे है अवेलेबल कोलैब, गूगल कोलैब इज आई पाइथन इन्वायरमेंट, और यहाँ पे आपको GPUs एंड TPUs की सपोर्ट भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एनाकोंडा इज द लोकल इन्वायरमेंट, आप अपनी मशीन पे इसको डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन 3.7 के साथ आता है और मशीन लर्निंग स्केलन के थ्रू
sklearn लाइब्रेरी जो है इसके अंदर इंपोर्टेड होती है, आप वो एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। केगल का मैंने बता दिया कि इससे कंपटीशन वेबसाइट जहाँ पे डेटा साइंस और लेक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर दिस इज चीट शीट फॉर मशीन लर्निंग, आप ये जो है आप जो डेवलपर्स होते हैं मशीन लर्निंग के, ये उनकी फ्रंट जो है ना बेंच पर लगी रहती है एक देखने के लिए कि भाई आप स्टार्ट करें, आपका कौन सा एल्गोरिथम लगना चाहिए ना, तो ये दिस इज अ चेक लिस्ट के आप चेक कर दें आपने कहाँ लाए करते हैं। डायमेंशन रिडक्शन करनी है, डेटा रिड्यूस करना है, यस तो आप इस तरफ चले जाएं, तो अगर नहीं करना तो आप चले जाएं लेबल डेटा पे ऊपर, क्या डेटा लेबल्ड है, यस है तो आप नीचे चले जाएं, नो है तो आप लेबल्ड नहीं है तो आप अनसुपरवाइज में चले जाएंगे, और लेबल है तो आप सुपरवाइज में आ जाएंगे। ठीक है, प्रिडिक्टिंग न्यूमेरिक, अगर आपने नंबर प्रिडिक्ट करने हैं तो आप इस तरफ चले जाएं रिग्रेशन की तरफ, अगर आपने नंबर नहीं प्रिडिक्ट करने तो आप इस तरफ चले जाएंगे क्लासिफिकेशन के टाइप, फिर एक अलग एक क्वेश्चन आंसर है। तो इस तरीके से आप फाइनल एक मॉडल चूज कर सकते हैं कि मुझे किस डेटा के ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। और ये विजुअलाइजेशन चीट शीट है, आप इसको ये आपके लिए आसानी करती है कि मुझे जो है इन वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा चार्ट सुइटेबल होता है, रिलेशनशिप, कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन के बेस के ऊपर ये एक वैरायटी ऑफ द चार्ट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये मशीन लर्निंग अज्योर की चीट शीट है जहाँ पे आप अपने एल्गोरिथम की सिलेक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनेरियोज एंड बेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल होंगी वीडियोस के अंदर, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड के अंदर मशीन लर्निंग जो है आपके पास जो अब 1000 रुपये का जो एक सेंसर आ रहा होता है उसके अंदर भी जो है मशीन लर्निंग अप्लाई होती है। वो आपको 2-3 दिन आप एक काम करें, वो गैजेट आप अपने बाजू पे एज अ वेयर कर लें, और 2-3 दिन आप एक टाइम पे जो है कहीं पार्क में दौड़ने चले जाएं, तो उसने टाइम नोट कर लेता है कि इस टाइम पे जो है ना ये जॉगिंग कर रहे होते हैं। अगर आप अगले दिन नहीं जाते तो आपको रिमाइंड करा रहा होता है कि इट्स टाइम फॉर जॉगिंग, हालांकि हमने उसको अलार्म वगैरह सेट नहीं किया होता। तो फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो है ये जो ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉड है या नहीं है। तो वेब सर्च के अंदर अब आपकी जो सर्च है वो आपको कौन सा पेज डिस्प्ले कराना है, कौन सा नहीं कराना, आपके जो आपको एड्स नज़र आ रहे हैं गूगल की तरफ से, अब बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द पेजेस हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन आपकी सर्च के ऊपर जो है आपको एक स्पेसिफिक पेजेस नज़र आ रहे हैं, तो वो सारी एक रिकमेंडेड एल्गोरिथम्स हैं जो बैकएंड पे अप्लाई किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स ऑटोमेटिक किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, मशीन गूगल ट्रांसलेट देख लें वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर रहा है। शुरू में जो गूगल ट्रांसलेशन की फंक्शन थी दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, वो क्या करता था, सपोज आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो उर्दू से इंग्लिश डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करता था, वो पहले किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था और फिर वहां से आके इंग्लिश में, तो एक उसकी इनडायरेक्ट। लेकिन अब वो जो है वो डायरेक्ट पे आ गया है, वो मशीन ट्रांसलेशन कर रहा है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स अवेलेबल हैं। गूगल ने 2018 में ज़बरदस्त गूगल डुप्लेक्स असिस्टेंट बनाया था, उसकी आप परफॉर्मेंस आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल डुप्लेक्स, वो देख लें आप हैरान हो जाएंगे। वो टेक्स्ट बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, आप उसको कुछ भी कह दें, अगर आपकी इंग्लिश की ग्रामर ठीक भी नहीं है, आप गलत वर्ड्स कर रहा है, वो क्या करता है, वो जो है उससे सेंस जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपके टेक्स्ट से, आपके वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वहां से सेंस ले रहा है कि ये क्या चाह रहा है, और वो उसके हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने कहा कि मुझे फलाने होटल में इस टाइम पे ऑर्डर प्रेजेंट करना है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली उस रेस्टोरेंट का नाम, उसके फोन नंबर उठाएगा, उसको कॉल करेगा, उससे बात करेगा। इसका उन होटल के ओनर को पता भी नहीं है कि ये मेरे साथ कोई बंदा बात कर रहा है या ये कोई पर्सनल असिस्टेंट है। गूगल डुप्लेक्स के ऊपर 2019 में यूएसए में केस भी हुआ था कि ये हमारे लिए जो है ना खतरा हो सकता है, हमें नहीं पता कि सामने कौन बात कर रहा है। तो बहरहाल ये एक टेक्नोलॉजी का है, उसको आप किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इमेज रिकग्निशन है, आप ये देख लें ड्राइवरलेस ऑटोनोमस कार्स आ रही हैं, ऑटोनोमस कार के हवाले से देख, वो रोड पे चल रही है, ह्यूमन मूवमेंट ये वो, लेकिन जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। 2019 में उबर की एक कैब ने एक्सीडेंट किया था, क्योंकि रात के टाइम पे अचानक कोई उसके सामने आ गया था जिसका वो एक्सीडेंट हो गया था। तो बहरहाल लेकिन ये फिर भी अच्छी परफॉर्म कर रहा था जो है ऑटोनमस कार। आपकी ईमेल स्पैमिंग है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं।
just look at the data and see the business value. That is important for your career growth everything. So up to you, Miss Aisha. So if anyone have any question, I'm here. जी मिस फबीहा. Okay, participants, if you have any question, you can ask. Please raise your hand and the host will unmute you. Yes, host, please unmute the participant Salman Sabe. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डाटा साइंस की जो जॉब्स होती हैं या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, उसमें उन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि पावर BI भी आना चाहिए, टैब्ल्यू भी आना चाहिए, पाइथन भी आनी चाहिए, आर भी आनी चाहिए। तो सर हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे एक टाइम में सीखें, और साथ में लिखा होता है कि एक्सपीरियंस भी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है. बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ. मैंने परसों एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी और वो फास्ट API के हवाले से थी. ओनर जिसने ये फास्ट API क्रिएट की थी, तो वो पोस्ट कर रहे थे कि मैंने एक जॉब देखी जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि फास्ट API के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो वो जो ओनर है जिसने क्रिएट किए, मुझे 1.5 ईयर्स हुए इसको क्रिएट किए हुए, तो इसका 4 साल का एक्सपीरियंस किसके पास होगा? सो ये कंपनीज होती हैं जो बस ऐसे हिसाब से सेट कर लें. आसान ये आप अप्लाई कर दें, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आप उनके साथ डेलिब्रेट कर लें, डिस्कस कर लें. जो आपके सामने स्किल, आपके पास स्किल्स हैं वो आप उनके सामने रखेंगे, भाई मुझे ये आता है, बाकी टाइम टू टाइम हम सीख लेंगे. बाकी ये है कि इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग. मेन चीज़ ये है कि आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, जस्ट लुक एट द कंपनी एंड इट्स स्ट्रैटेजी. वो किस, उसके पास डेटा क्या है, उसकी बिजनेस गोल्स क्या है. आप उनके बिजनेस गोल के हवाले से ना एक सिनेरियो बना के जाएं, उनको बताएं कि भाई आपका ये बिजनेस है, इस तरह का डेटा आप लोग जनरेट कर रहे होंगे, आई होप मैं आपके पास ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो आई एम श्योर कि कंपनी जो है ना उनको ये पसंद, ये जो है ना एक क्रक्स होता है कि आप उनको बिजनेस वैल्यूएशन दें. फिर वो एक आपको ट्रायल रखते हैं, चलें ठीक है भाई आप ये डेटा सेट लें, हमें यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल कर दिखा दें. तो इस तरह से आपकी स्टार्ट हो सकती है. एनीवन एल्स? जी फबिया. Okay, do we have any further questions? Please raise your hands. Host, if we have any questions in the chat, please read them out. Okay. Good balance. One question in chat: how we use mathematics in data science? गुड क्वेश्चन. हाउ वी यूज मैथमेटिक्स. देखें, अगर आपके पास डेटा सेट है और आप उसके अंदर को लीनियरिटी निकालना चाह रहे हैं, को रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो आपके पास लीनियर अलजेब्रा की जो है नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज आप को लीनियरिटी कैसे निकालेंगे? आप कोई भी ऑपरेशन, जिस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपने डेटा को रीस्केल करना है, तो वहाँ पे भी जो है आपके पास एक फार्मूला था, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स. और हर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का बैकएंड पे एक मैथमेटिकल फार्मूला है. मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐड करके इस सेशन को बोरिंग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स बिहाइंड एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. आल्सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वो भी जो है मैथमेटिक्स का पार्ट हैं, जिनको यूज करते हुए आप
यह अप्लाई कर सकते हैं। सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आप बायन स्टैटिस्टिक्स है, उसके अपने फार्मूलाज हैं। आप अगर ओवर या अंडर सैम्पलिंग डेटा सेट के अंदर जो क्लास इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो वो ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग डेटा सेट को इन्हांस करना है, तो मीन कैलकुलेट करके जो एडिशन करनी है, दैट इज आल्सो थ्रू दी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर अलजेब्रा। सो एक हर स्टेप पे जो है ना मैथमेटिक्स का रोल अवेलेबल है। और जब आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं, डायमेंशन रिड्यूस करने हैं या डायमेंशन एक्सटेंड करने हैं, वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं। जी। One more question in chat. Any Rust language environment algorithms? Repeat again. Does any Rust language environment algorithm exist? Any? Sir, Rust language में environment algorithm exist करता है नहीं करता है? I don't have any knowledge about the Rust language. Do we have any further questions? Yes, we have another question from Salman Saber. Can you please unmute him? Yes, please. हेलो जी सर। सर, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन कि हमें आर में काम करना चाहिए या पाइथन में? डिपेंड्स आपको क्या फिजिबल लगती है। आपको अगर आर सुटेबल लगती है, लेट्स गो अहेड विद द आर। अगर आपको पाइथन सुटेबल लगती है, गो अहेड विद पाइथन। ये है कि थोड़ा सा वो नॉन जो है टेक्निकल है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो थोड़ा सिंपल वे है। और जो पाइथन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर जाहिर सी बात है फिर उसकी इफ़िशिएंसी भी है। तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं। फीचर्स आर के अपने फीचर्स हैं, पाइथन के अपने फीचर्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपल और ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करना चाह रहे तो आज सुटेबल फॉर दिस। Okay, thank you. Any further questions? Host, can you please handle the chat section? Yes, Arifa Mustafa has a question. Can you please unmute her? अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि once I quoted somewhere कि during discussion कि machine learning mainly जो है वो tools का नाम है, और फिर उस पर रेजिस्टेंस मुझे मिली भी थी इंस्ट्रक्टर की तरफ से कि इट्स नॉट अबाउट टूल्स, इट्स मोर देन टूल्स। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और इस तरह की चीज़ें हमें डिटेल में सीखनी पड़ती है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बीइंग अ डेवलपर और अ फ्रीलांसर, अगर मैं सिर्फ टूल्स पे रहना चाहती हूँ तो किस हद तक जो है वो मेरी ग्रोथ मुमकिन है इस फील्ड में, कि मैं इन डिटेल मैथमेटिक्स को टच ना करूँ और टूल्स पे ही काम करते हुए अपना जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव करूँ। ये किस हद तक मुमकिन होता है? देखें, अगर आप पाकिस्तान में रहने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टूल यूज़र आपको ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेटा इंजीनियरिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पूरी सही अप्लाई की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड, जिस तरह से मैंने ऊपर रोल डिस्कस किए कि डेटा एनालिस्ट का एक अपना रोल होता है, डेटा इंजीनियर का एक अलग रोल होता है, एक है मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर आप टूल यूज़र हैं और आपको सही से टूल यूज़ करना आ रहा है, तो फिर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पे ये है कि फिर आपको एल्गोरिथम एंड टूल सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना आ रहा हो। टूल मीन्स के एल्गोरिथम और उसके सपोर्टेड जो है सॉफ्टवेयर, वो आपको दोनों आने चाह रहे हैं। मीन्स कि आपके पास एंड टू एंड मशीन लर्निंग, आपको एक रेडी टू यूज डेटा सेट मिला है कि आप इसके ऊपर आपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करना है और रिजल्ट हमारे साथ शेयर करने हैं। तो ये वाला गैप जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर फिल कर सकता है। तो आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप अपवर्क या फ्रीलांसर पे देखेंगे तो वहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर एक अलहदा जॉब होती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम जिनसे अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद फिर पूरा काम जो है डेटा साइंटिस्ट का होता है कि उसके अंदर वो इनसाइट्स एंड हाइपोथेसिस टेस्ट। Okay, host, can you please unmute Syed Fahad Ali Shah? We have another question from him. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
सर आपकी बड़ी मेहरबानी जो मतलब इतना कोई सेशन चला है, बिल्कुल मेहरबानी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामर के लिए आपने सॉफ्टवेयर बता दिए एज ए प्रोग्रामर, अगर हमें स्टैटिक एंड मैथमेटिक ना आए तो फिर उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है या गूगल करें? नहीं सर, मैंने वहाँ पे इनलिस्ट किए थे कि आप वेका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। वेका है, और IBM का SPSS जो है सॉफ्टवेयर है, दैट इज आल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये जो सेंटर में ये सॉफ्टवेयर है, दिस इज वेका, आप ये यूज कर सकते हैं। दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग की नॉलेज जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। एंड K9, दिस इज आल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। अच्छा, अज्योर मशीन लर्निंग एंड गूगल ऑटो ML, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको क्लाउड एंड जो है थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर ये जो है कॉन्फ़िगर होते हैं और इंटीग्रेट भी होते हैं ये मॉडल। लेकिन वेका और K9 के ऊपर आप प्योरली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे ना, तो एनाकोंडा के इन्वायरमेंट में एक सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज ऑरेंज 3। ऑरेंज 3 इज आल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। ओके सर, सही है, थैंक यू सर। Thank you very much. Do we have any questions in the chat? No. Okay, so our SSR, Mr. Rafe Sheikh, has joined us today. Rafe, would you like to give a few comments? Hello, am I audible? Yes, you're audible. Yes. Thank you so much, sir. Sir Zahid Hussain थोड़ा सा late join कर सका just due to some busy schedules towards something. माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टॉपिक था, और इस तरह के टॉपिक्स की वेबिनार्स होने चाहिए IEEE स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कमेटी में, और इवन कराची सेक्शन के बाउंड्रीज में भी, और इवन स्टूडेंट ब्रांचेस की तरफ भी। तो थैंक यू सो मच सर। इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आपसे कि इस तरह के जितने भी वेबिनार्स हैं आप हमारे उसमें हमारी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कमेटी के एक बाउंड्रीज में, और जितनी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कमेटी की के अंडर स्टूडेंट ब्रांचेस आती हैं और IEEE मेंबर्स के लिए जितना बेनिफिशियल हो सके, तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए। इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल एंड इट्स ऑनर फॉर मी। जी सर, it's honor for me to speaking at this forum, and I will available inshallah for you. It is actually our honor and it is our pleasure. Thank you very much. So we have a little something for you, sir. Abdurrahman, can you please share the poster? Should I stop sharing? Yes, can you please? Yes. Okay. Thank you, sir. So this is our humble way of saying thank you to you for all your efforts and your time in helping the student body. So we're on behalf of all the participants and our entire organizing body, this is a very small token of appreciation. So please accept it, and thank you so much for being with us here. Thank you. Okay, now we would also like to thank all our participants for joining us today and showing interest in such events. Thank you for your continued support. As we explained before, a quiz link will be shared with you through email, and only after attempting that you will be eligible for your certificates. A recording of the event will also be provided along with it. So this is it for today. Thank you very much. Let's see you again soon. Allah Hafiz. Thank you so much everyone. Allah Hafiz.